जी। ये हमारा सिग्नेचर अच्छा सेशन है, जी, बिगनिंग ऑफ द सेशन है। स्टार्ट हेलो कर लेते हैं। हेलो सिनर्जी, हेलो एवरीवन। टुडे इज May 18, संडे। इंडिया में अभी 6 बज रहा है, 6 बज के 5 मिनट हो गया है। और जी आज बहुत ही अच्छा सेशन हम लोग करने वाले हैं मिस्टर संजय दत्त शर्मा के साथ। संजय दत्त तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, पर मिस्टर संजय दत्त शर्मा। And जी। Manisha is going to introduce us to the guest. She has invited him, and we are honored to have him. Over to Manisha. Thank you, Manisha. Thank you, थैंक Chaya. यू मैम। Thank you for that initiation of the very nice session today by Mr. Sanjay Dutt Sharma. And he's known to me as a family friend and a wonderful human being, a ZSM. Some 15 years back, he used to be ZFM in the various pharma companies at that level. He one day decided to change his thing. But before talking to Sanjay, I would just like to introduce Sanjay and his stature and how much associations he has and exhibitions and his. So just a brief intro for your information. He's a passionate photographer and he does wonderful work with the camera and has a strong inclination for wild birds, wildlife, and in particular, and other and much more about nature photography. So after 2 decades of experience almost in various pharma companies and industry, big picture Reliance, he was doing that marketing and all. After that, he decided that he would be behind the camera and observing the nature. So nature is not a place to visit; it is a home, I believe, and we can never have enough of nature. And if you truly love nature, you will find health. You will find lot many healthy things and hearty things everywhere, and adopt the pace of nature. And her secret is out. And your trails, in the nature trail, they'll be crooked, winding, lonesome, scary, dangerous, heighted, and they lead to most amazing new views. So uh, just to before that, I will just let you know how Sanjay has been associated. So he started his life as a basically as a photographer, and then he became more associated with wildlife and bird. And he decided full-time act and be due to the industry after working for almost 2 decades with it. And he has been able to capture some rarest of the rare bird, and is now a very successful trainer, and particularly has gone to abroad also and is nationally acclaimed. And he's a regular his photos are a regular feature in Dainik Bhaskar Gwalior edition. And every time we have a news, and I'm accustomed to seeing him often there. And he's now a successful trainer for photography and wildlife. And even he's called in all the schools, colleges, and certain groups who are interested in nature photography. And he's also being called abroad by various famous groups. So he's been associated with Madhya Pradesh Forest Department as a master trainer since 2017. Sindhya Kanya Vidyalaya is a photography. Sindhya Kanya Vidyalaya is a very famous girls' college, say a branch of Sindhyas only, just like we have a Sandhya boys college. So we have a Sindhya Kanya Vidyalaya at Gwalior, which is photography and wildlife trainer since 2018. Atal Biharji Bajpayee Indian Institute of Information, Triple ITM, and Technology and Management as a professional consultant in photography since 2017. So he has been very active in this and very sought after as a photographer, learning the tricks of photography, knowing the camera, and then about wildlife. So he has conducted many workshops, out of which just a few name important ones is wildlife photography session at Royal Norwegian for Photography Society Oslo in 2019. Puno National Park, Shiopur, known for tigers, Puno, and that is conducted 5-day workshop on photography and fire and bird watching in 2019-20. Bandhavgarh National Park, which is at Shivpuri, conducted a place near Gwalior. So it's conducted a short-term forest training school on birds and photography. Pilibhit Tiger Reserve, 5-day bird species count exercise to establish the existence of species in that particular region. Chambal Wildlife Sanctuary, 3-day bird species count. Puno National Park, Shiopur, another 3-day bird species count exercise. So,
Do you know by the way, do you know that relationships are also like birds? If you hold them tight, they die. If you hold them loose, they fly. And if you hold them with care and love and affection and tender care, they remain with you. So he has magical fingers. He captured the rarest, and he's very, he'll teach you how to handle the birds. So he also empaneled with the following schools for photography workshops: India School, DPS World School, all the prominent schools, GD Goenka, Army Public School. At Agra also, Vijay International, Mount Abu School, Little Angel School, Gwalior, Shivpuri Happy Day School. So he has been uh, a teacher. He has been associated with various groups and taught them the finis, because everybody nowadays is moving with a camera. Everybody thinks that they are photographer and whole nature has come into their camera. But to understand photography, to understand whether with the finis and what to capture, there's a big scenery, you adopt the pace of nature. So that is being taught by him. And bird in hand is worth two in the bush is a very famous saying. And there are no rules for good photographs. There are only good photographs. So, but he teaches certain things which make you better than others. He has been a winner at the annual photography competition conducted by Government of Madhya Pradesh. Second position in the prestigious Dainik Bhaskar photography competition, and in which it's a national activity. In 2018, he got the second position. First position at the National Tiger Film Festival, Bhopal, 2019. He has been associated with Reliance Big Picture Group, and he has worked for 3 years in that. Also won the photography contest conducted by Camerona Academy. Where is that, Sanjay? Where is that? It's I a don't know. like है हैदराबाद में इनका ऑफिस है हैदराबाद में So that is नेशनल okay. So that is 2018, and exhibited. He has done exhibitions at Indo-Arabian Cultural Society Wildlife Photo Exhibition, Sharjah, in 2016. And so, Sanjay, have you heard or watched the Little Birdie Sing? little sorry Birdie Sing. no well So the little bird is, when it sings, it says, "No matter whatever was yesterday, today let's start the new day fresh." And it sings and start with a day with a new song. So that is how the life should be. And then he is also, after these exhibitions, he is widely acclaimed as a very, very good teacher, and he will tell you more about his work from his mouth. So Sanjay, please tell us how you got into this, trapped into this photography. Was it a passion? Was it a childhood passion? You realized in life somewhere that, like, now it is time to follow one's passion, or sudden change. It's a very big turning game. So how was the turning point in your life? well ma'am, thanks a lot for such a nice introduction. I'm really on cloud nine, I can say. but आपका जो क्वेश्चन है मैम कि like how it started, in fact मैम photography was my like childhood hobby, and my father was in forest department working as a divisional forest officer. So sometimes we used to go with him to nature, like jungle and national parks and all. तो वो वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट तब से शुरू हुआ, और कई बेसिक चीजें सीखने को भी मिली उनके साथ में, बाकी फॉरेस्ट के स्टाफ के साथ में. तो ये मेरा इंक्लिनेशन धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ की तरफ बढ़ता गया. Like working for around 15 or 18 years with some multinational companies. उसके बाद फादर की जरा तबीयत खराब हुई. It was an like accidental turnaround. तो फादर की तबीयत खराब तो मुझे ग्वालियर वापस आना पड़ा. तो at that time I started like doing this. तो शुरुआत तो मेरी वहीं से हुई, और ब्रेक मिला मुझे सिंधिया कन्या विद्यालय से एज ए टीचर. तो वहां से फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा सा स्किल्स को अपग्रेड करता गया. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एज मास्टर ट्रेनर भी जुड़ गया, क्योंकि यहाँ मेरे पास टाइम भी था और कुछ लिंक्स भी थे. तो लकीली मैं उनके साथ एसोसिएटेड हूँ अभी भी. आज से करीब 8 साल हो गए करीब. तो जर्नी तो मेरी इस तरह से स्टार्ट हुई, और इट्स स्टिल गोइंग ऑन. लेट्स सी हाउ आई कैन गो, हाउ फार आई कैन गो. लेट्स सी. As Chaya, you can take over, and you wanted to see, were anxious about seeing his picture. So can we start the बिल्कुल. और I also wanted to invite हमारे साथ दूसरी मनीषा भी ज्वाइन की है, और अनुराग श्रीवास्तव इज वन ऑफ आवर जूनियर बैचमेट साइकियाट्रिस्ट. बट जब वो शिकागो आया था तो अपना कैमरा लेके आया था, उसमें मैंने देखा उसको लेंसेज बदलते हुए. तो ही इज आल्सो जॉइंड, सो वी कैन बिगिन द
viewing session. Definitely, जब भी आप ready हैं. Sure, ma'am. So first we'll start. अगर हम लोग बर्ड वॉचिंग की बात करें, थोड़ा सा हम बर्ड्स वॉचिंग के थोड़ा बेसिक्स पे अगर हम बात करें, तो आई थिंक इट वुड बी बेटर. बहुत छोटा सा Will it be okay, ma'am? There is a PPT presentation for this इसको bird watching. Basics. full screen कर सकते हैं क्या? Yes, ma'am. Is it visible, ma'am? Yes, we can see a very cute bird, yellow and black, with a mohawk hairstyle. Crest on his head. Well, let's start. हमारे इंडिया में अगर बात करें बर्ड्स की, तो अभी तक जो काउंट हुआ है 1360 स्पीसीज बर्ड है, 1350 to 1360 के आसपास, which includes migratory and resident birds. एंड अगर जैसे मैम आप यूएस में रहते हैं, तो अगर टोटल वर्ल्ड की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 10,800 बर्ड्स अभी तक काउंट की गई हैं. तो मतलब बहुत ह्यूज नंबर है, स्पीसीज बहुत ज्यादा है. तो उनको पहचानना, उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा टफ है, उनको प्रिजर्व करना भी बहुत टफ है. तो लेट्स सी कि बर्ड वॉचिंग में हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं. लेकिन बर्डिंग अगर हम लोग को स्टार्ट करना हो बर्ड वॉचिंग, तो बर्ड वॉचिंग के जो हैबिटेट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. फॉर बर्ड वॉचिंग वी कैन गो टू हिल्स, we can go to plains, we can go to forests, seashores, wetlands, rivers, deserts, grasslands, agricultural fields, city park, lakes, and residential areas. That means birds are everywhere. Birds के लिए हमको कोई particular spot नहीं सर्च करना है. Birds आप जैसे अपने घर से बाहर निकलेंगे, you will find some or other birds sitting on a tree or branch. तो birds हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं. केवल हम उनको देखना है, उनको पहचानने की जरूरत है. और मैम एक बहुत अच्छी पुरानी सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मुझे दो व्यूज आ रहे हैं आपके और ऑडियंस के. आपको भी ऐसा हो रहा है क्या? आर यू सीइंग टू पीपल? नहीं, मुझे तो मैम से साइड में बार आ रहा है, इसमें आप लोग फोटोज दिखा है, मेरा स्क्रीन दिखा है. somehow मेरे इसमें डबल आ रहा है, तो I'll figure it out. चलो, sorry, no problem. Sorry to interrupt you. So there is a very old good saying that birds could exist without men, but men would perish without birds. मतलब बर्ड्स तो हमारे बिना सर्वाइव कर ही जाएंगे, लेकिन हम लोग उन बर्ड्स के बिना काफी परेशानी महसूस करेंगे. और ये प्रैक्टिकल भी है और रियल भी है, इट्स अ फैक्ट. नाउ बर्ड वॉचिंग इज मैम, ये हम लोग बच्चों को बताते हैं मैम, ये जो चीजें हैं. बर्ड वॉचिंग इज फन. बर्ड वॉचिंग प्रोवाइड्स यू सेटिस्फेक्शन कि हम लोगों ने आज नई बर्ड देखी, नई बर्ड आइडेंटिफाई की, हमारे रीजन में कोई नई बर्ड स्पीशीज देखी गई, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि लाइक हमने किसी बर्ड को पहचाना है, रिकॉर्ड किया. एंड हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी है बर्ड वॉचिंग, बिकॉज बर्ड वॉचिंग के लिए आपको मॉर्निंग में या इवनिंग में आपको निकलना पड़ेगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, और वॉक करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट गो ऑन योर व्हीकल, क्योंकि आवाज से बर्ड्स बहुत डिस्टर्ब होती है, बर्ड्स बहुत शाई होती हैं. तो बड़ा प्रिकॉशंस के साथ हमको वॉक करना पड़ेगा. तो बर्ड वॉचिंग ये बच्चों के लिए काफी अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी, उनको सुबह उठने की आदत भी पड़ेगी, विच इज वेरी टफ, आई नो दीज डेज. एंड मैम बर्ड वॉचिंग के रिक्वायरमेंट्स हैं लव फॉर द नेचर, जो हम सभी है रखते हैं अभी, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, अ फील्ड गाइड जो हम लोगों को हेल्प करे आइडेंटिफाई करने में स्पीशीज कौन सी बर्ड की है, नोट पैड एंड पेंसिल, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइट कलर क्लोथ्स लाइक या कैमोफ्लेज क्लोथ्स. तो इससे बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ को भी, अगर हम लोग ब्राइट और अगर फ्लोरेसेंट कलर के क्लोथ्स रखेंगे तो वो डिस्ट्रैक्ट होती हैं और थोड़ा रिवेलियन भी हो सकती हैं. तो इसलिए ये सब चीज हमको ध्यान रखना है. और मैम देयर आर 3 P's written there. One is patience, other one is practice, क्योंकि पेशेंस बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको एक पर्टिकुलर स्पॉट पर बैठकर बर्ड का वेट करना है, और बर्ड का मूवमेंट हम लोग उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सो दैट कि वो वहां से भाग जाएगी. प्रैक्टिस तो आपको चाहिए कि वो आप प्रैक्टिस के साथ ही उसको पहचान सकेंगे, आपको पता चल सकेगा कि बर्ड कहाँ है, उसका हैबिटेट कहाँ है. एंड थर्ड वन इज पैशन. पैशन बहुत जरूरी है. पैशन मीन्स, पैशन को हिंदी में पागलपन भी बोल सकते हैं.
क्योंकि अगर पागलपन नहीं होगा तो हम बर्ड वॉचिंग जैसी यूजलेस एक्सरसाइज क्यों करेंगे, जिसमें ना कुछ आपको अर्निंग होनी है, ना कुछ मिलना है आपको. तो all these three P's are very much required. Now, gears which we require is like एक अच्छा कैमरा with high FPS, lens 300 mm plus, and some tripod और monopod, क्योंकि कैमरा और lenses बहुत heavy weight के होते हैं, so that हमको support कर सके और हम फोटो अच्छी ले सकें. और उसके बाद में हमें पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ताकि थोड़ा सा क्रॉप करना हो, कुछ एडजस्ट करना हो. तो मैम हम लोग अपने ग्रुप में कुछ फोटोग्राफर्स भी हैं क्या जो एज ए हॉबी फोटोग्राफी करते हो? कोई है हमारे ग्रुप में? Anyone is allowed to unmute and raise your hand. We can. Anyways, तो हम लोग बर्ड वॉचिंग या बर्ड फोटोग्राफी की बात कर रहे थे. Sanjay, everybody is photographing, but some are successful and some are not. I am unsuccessful. No, there is no success or unsuccess. It's like everyone is an artist, but they are just keeping it, hiding it in themselves. ऐसा है. Maybe मेरे साथ ऐसा है सर कि मैं मेरे पास एक DSLR है बड़ा पुराना सा निकॉन का, और मैं वो हमेशा अपने ट्रैवल्स में ले जाता हूँ और उससे बस, लेकिन मैं पॉइंट एंड शूट काइंड ऑफ फोटोग्राफर हूँ, मुझे उतना न्यूएंसेस वो सब नहीं आते. पर मेरे पास हर ट्रिप में मैं फोन में मेरे पिक्चर्स नहीं होते, मेरे DSLR में ही पिक्चर्स होते हैं. That's great, sir. That's great. बिल्कुल सर, क्योंकि Today is the day. Today is the day he is going to learn more. तो मैम एक्चुअली मोबाइल या अपन मोबाइल से फोटोग्राफी सभी लोग करते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ और बर्ड फोटोग्राफी के लिए मोबाइल बिल्कुल भी काम नहीं करेगा. उसके लिए आपको कैमरा विद लेंस आपको यूज करना ही पड़ेगा. तो अगर हम लोग अगर बर्ड फोटोग्राफी की बात करें तो हाउ टू टेक गुड बर्ड पिक्चर्स, दैट वी शुड अंडरस्टैंड, वी मस्ट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. हमको सब्जेक्ट लाइक हम अगर हम किसी किंगफिशर की फोटोग्राफी करने जा रहे हैं तो वी मस्ट नो कि वो किंगफिशर किस एरिया में मिलता है, उसका हैबिटेट क्या है, उसकी फीडिंग हैबिट क्या है, सो दैट कि अगर जैसे किंगफिशर की अगर बात करें तो वो हमेशा आपको वाटर बॉडीज के पास ही मिलेगा, बिकॉज इट डाइव्स इन द वाटर एंड कैचेस द फिश. तो इस तरह की हमको सब्जेक्ट की पहले एक तो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होना चाहिए. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आवर होम ओनली, क्योंकि हमको घर के बाहर ही हमको स्पैरो या बुलबुल या कोई और बर्ड, मैना भी मिल जाते हैं घर के बाहर ही. तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली. और टाइमिंग जो हम लोग बोलते हैं बर्ड वॉचिंग के लिए, टाइमिंग इज द बेस्ट. टाइमिंग इज द गोल्डन लाइट. गोल्डन लाइट मीन्स मॉर्निंग के 3 घंटे और इवनिंग के 2 घंटे. दैट इज कॉल्ड गोल्डन लाइट. उस वक्त हमारा सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे उसके नेचुरल फोटोज आते हैं, उस पर हार्श लाइट नहीं पड़ती और एंगल भी उसका प्रॉपर बनता है. उसके बाद हम यूज करेंगे अपर्चर या शटर प्रायोरिटी पर जब भी हम कैमरा यूज करेंगे. और बर्ड इन फ्लाइट भी एक टफ सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में आगे अपन बात करेंगे जब हम लोग फोटोग्राफ्स देखेंगे. अच्छा, अगर बर्ड को पहचानने का सबसे आसान तरीका, आसान क्या मतलब, तरीका तो थोड़ा टफ ही है, लेकिन उसके लिए कुछ पॉइंटर्स हैं. जैसे अगर हम बात करें कि मोस्टली बर्ड्स के जो नॉमेनक्लेचर या नाम जो रखे जाते हैं उसके बॉडी पार्ट्स के ऊपर ही रखे जाते हैं. अगर आपने एक सबसे कॉमन बर्ड है बुलबुल, उसका अगर नाम सुना हो तो उसका पूरा नाम है रेड वेंटेड बुलबुल, जो हमारे यहाँ इंडिया में बहुत कॉमन है. तो रेड वेंटेड बुलबुल उसका इसलिए पड़ा क्योंकि उसका जो एक लोअर बॉडी पार्ट होता है वेंट, उसको रेड कलर का स्पॉट होता है, इसलिए उसका नाम रेड वेंटेड बुलबुल पड़ गया. तो ऐसे बहुत सारी बर्ड्स हैं जिसका नाम उसके बॉडी पार्ट्स के ऊपर ही रखा जाएगा. जैसे हम ये बात करें, दिस इज कॉल्ड हेड, बर्ड का जो है. देन दिस इज कॉल्ड थ्रोट, दिस इज ब्रेस्ट, then this is belly, thighs, this is vent, tail, and this back part is called rump. जिसे रेड रम्प स्वेलो भी होती है, एक बर्ड होती है, तो वो उसके बॉडी पार्ट के ऊपर ही उसके नाम रखे गए. दिस इज बैक. गर्दन का पिछला हिस्सा इसका नेप कहलाता है, नेप, NEP, नेप. एंड दिस इज उसका जो बीक होता है, जिसको हिंदी में चोंच बोलते हैं, तो उसको बीक या बिल बोलते हैं. तो जो भी अगर हम बर्ड के आगे हम बात करेंगे, बर्ड के फोटोज देख के उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो वो मोस्टली उसको बॉडी पार्ट से ही रिलेट करेंगे. तो एक ही डायग्राम, इससे थोड़ा सा हमें समझने में आसानी मिलेगी. तो विल स्टॉप हियर. अगर बर्ड वॉचिंग के बेसिक्स के बारे में अगर कुछ डिस्कस करना हो तो वी कैन, उसकी अदरवाइज हम लोग आगे चलेंगे. एक और सेशन करेंगे आगे.
श्योर मैम, श्योर। नाउ हम लोग So, कुछ फोटोग्राफ्स देखते हैं। Sanjay, I just want to ask, is it the about the all about the camera, or is it about the man behind the gun? Meaning, which which is more important? Now, You are nowadays, important, and how do you fraction in a fraction of second the bird flies off? How do you know recognize naked eyes from such a long distance? कैसे समझ में आता है ये कौन बैठी है? मतलब जहां हमें कुछ नहीं दिखता है वहां आप लोगों को दिख जाता है, हम लोग हो सकता है इधर उधर देख रहे हो। तो यू नीड yes, दैट आई, यू नीड दैट नॉलेज। एग्जैक्टली मैम, ये वहां तो कुछ होता है बैठा मैम, हो। ये बात है कि हम लोगों की आईज लाइक उसको कैच कर लेती है कौन सी बर्ड, वो अगर वो बैठी है तो उसके स्ट्रक्चर से, उसका शेप देख के दूर से भी हम उसको पहचान सकते हैं। और हम्म। कई बर्ड्स तो ऐसे हैं मैम जिसको मैं अराउंड 100+ बर्ड्स हैं जिनको मैं केवल उसकी आवाज से पहचान लेता हूँ बिना देखे। तो मेन मेन चीज है मैम प्रैक्टिस। And प्रैक्टिस is it सबसे बड़ी like चीज। the eye sees what your mind knows? यस मैम, एग्जैक्टली। और मैम ये भी बात सही है कि इक्विपमेंट भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैन बिहाइंड द गन इज इम्पोर्टेंट, बट इक्विपमेंट, गन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट नाउ इट इज। ठीक है, इतना एडवांसमेंट हो गया है और इतना फास्ट एक्शन होता है बर्ड्स का या वाइल्ड लाइफ का कि आपके पास अगर अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा लेंस नहीं है, तो आप उसको कैप्चर करना बहुत टफ हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों चीजें इक्वली पार्ट प्ले करती हैं मैम। तो मैम जो हम फोटोग्राफ्स देख रहे हैं तो उसमें कुछ एक फोटोग्राफ्स आउटसाइड द वाइल्ड लाइफ, आउटसाइड द बर्ड लाइफ भी हैं, तो वो चलेगा, कोई इशू तो नहीं है उसमें? दौड़ेगा। यस मैम। मैम फर्स्ट फोटोग्राफ आई विल शो। ये हमारा ग्वालियर में एक कटोरा ताल एक जगह है, वहां हम लोगों ने एक म्यूजिकल फाउंटेन बनाया हुआ है। अगर कभी टाइम मिले तो मैम तो जाइएगा देखने उसको। एक म्यूजिकल शो होता है अच्छा। और इसके लिए मैम फोटोग्राफ क्योंकि नाइट फोटोग्राफ है, इसको लेना थोड़ा टफ होता है, इसके लिए आपको ट्राइपॉड यूज करना पड़ेगा और लॉन्ग शटर स्पीड रखना पड़ेगा, तभी ये इफेक्ट आ पाएगा। अदरवाइज इतना क्लैरिटी या इतना उसमें वो नहीं मिल पाएगा। मोबाइल से हम ले सकते हैं, लेकिन मोबाइल में एक्चुअली मोबाइल का सेंसर साइज थोड़ा छोटा होता है, तो उसको आप ब्लो अप नहीं कर सकते, उसको आप बड़े पोस्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपको डीएसएलआर कैमरा या आजकल मिररलेस कैमरा आ गए हैं, तो वो यूज करना ही पड़ेंगे अगर आपको अच्छे फोटो लेना है। देन नेक्स्ट फोटोग्राफ है, ये एक वाइट बेली ट्रिपाई है और ये फोटोग्राफ साउथ में वेस्टर्न घाट्स का फोटो है। और ये काफी रेयर बर्ड है, वो केवल ये बर्ड आपको केवल साउथ में ही मिलती है, वेस्टर्न घाट्स के एरिया में, केरला एंड गोवा का लोअर पार्ट। दिस इज कॉल्ड वाइट बेली ट्रिपाई। देन लैंडस्केप्स है दिस वन। ये बर्ड भी मैम बहुत रेयर और बहुत खूबसूरत बर्ड है। इसका नाम है ब्लू थ्रोटेड बारबेट। बारबेट एक मैम स्पीशीज होती है बर्ड की, उसमें भी सब स्पीशीज हैं, करीब 6 या 7 स्पीशीज हैं इंडिया में, सब स्पीशीज। तो ये काफी खूबसूरत है, ब्यूटीफुल बर्ड है और रेयर टू कैप्चर है मैम, ये क्योंकि बहुत एजाइल होता है, रुकता नहीं है कहीं, तो उसका फोटो लेना और अगर शार्प फोटो लेना वो भी थोड़ा टफ काम हो जाता है। तो उसके लिए आपको कैमरा भी अच्छा होना चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिस भी होना चाहिए। ये आपको बर्ड मिलेगी पहाड़ों के एरिया में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, हिमालय के जो फुट हिल्स है वहां ये बर्ड्स आपको मिल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्लू थ्रोटेड बारबेट। दिस इज ब्लैक थ्रोटेड टिट और ये फीडिंग कर रहे हैं अपने जुवेनाइल को। ये जाके कहीं से ग्रेन कुछ लेके आई है, उसको फीड कर रही है। मैम बर्ड फोटोग्राफी में सिंपल बर्ड के अलावा अगर इस तरह कुछ एक्शन शॉट्स मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, सो दैट कि उनका थोड़ा सा एस्थेटिक वैल्यू बढ़ जाता है। मैम ये भी एक फोटोग्राफ है, ये अगर हम बात करें तो इसमें रेड कलर के आपको लाइंस दिख रहे हैं, ये गाड़ी की टेल लाइट्स हैं। और इसको मैम जो गाड़ी मूव कर रही है, बहुत फास्ट मूव करके जा रही है, और इसको कैप्चर करना भी, इसको भी आपको ट्राइपॉड यूज करना पड़ेगा और स्लो शटर स्पीड यूज करनी पड़ेगी, तब आप ये इफेक्ट ला पाएंगे। नाउ मैम ये भी हिमालयन बर्ड है, काफी खूबसूरत बर्ड है। इसका नाम है रेड बिल्ड लियोथ्रिक्स। लियोथ्रिक्स इज द बर्ड, और इसका अगर आप बीक देखेंगे, बिल देखेंगे, वो रेड कलर का है, इसलिए इसका नाम रेड बिल्ड लियोथ्रिक्स पड़ गया। आप अगर देखेंगे तो हिमालयन बर्ड्स बहुत खूबसूरत है मैम, बहुत ही कलरफुल और अच्छी बर्ड आपको दिखेंगी, उनकी साउंड भी अच्छी है। एंड दिस इज मैम वन ऑफ द सब स्पीशीज ऑफ किंगफिशर। दिस इज कॉल्ड स्टॉर्क बिल्ड किंगफिशर। ऑल दीज बर्ड्स आर क्वाइट रेयर मैम, बहुत टफ है उनको लेना। एंड बहुत ही नाउ सुंदर है, बहुत ही सुंदर। थैंक्स अ लॉट मैम।
ये मैम टाइगर का सब एडल्ट है। ये पन्ना का फोटोग्राफ है, और पन्ना में आजकल पन्ना नेशनल पार्क में साइटिंग टाइगर की बहुत अच्छी हो रही है, और टूरिस्ट काफी बढ़ गए हैं वहाँ। बुकिंग मिलना काफी टफ हो जाता है, लेकिन वहाँ टाइगर्स की साइटिंग अच्छी है। दिस इज मैम ब्लैक हेडेड गल। ये भी माइग्रेटरी बर्ड है, और ये फोटोग्राफ मैंने चंबल में लिया हुआ है, चंबल रिवर में। और ये विंटर्स में ही दिखेंगे आपको, माइग्रेटरी बर्ड है बिकॉज ये। दिस इज मैम बुलबुल की दूसरी स्पीसीज, हिमालयन बुलबुल। हमारे जो मिलती है वो रेड वेंटेड बुलबुल मिलती है, ये हिमालयन बुलबुल है, और ये हिमालय के एरियाज में मिलती है। और मैम इनकी बर्ड्स की फोटोग्राफी के लिए थोड़ा टफ, आपको ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी, पहाड़ों में चढ़ना भी पड़ेगा, कभी कभी थोड़ा रिस्की कुछ हैक्स करने पड़ते हैं, बट लेकिन सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब एक अच्छा फोटो मिल जाता है। ये हमारा ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट। डिफरेंट एंगल कम देखा यस, जाता है। कम्प्लीटली डिफरेंट। जो नेट पे है वो ये उससे बिल्कुल डिफरेंट एंगल है। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, नेट तो पे एक ये रूटीनली पिक्चर दिखती है। ब्लू कलर का क्या है पिलर्स पे? दैट्स द कलर, पेंटिंग, नेचुरल कलर। पेंटिंग हुआ है। हाँ, काफी पुराना पेंट, कलर पेंटिंग है पिलर्स पे ना। अच्छा, अरे वाह, जी जी बहुत ही बढ़िया एंगल है। जी, थैंक यू। जो नेट ये पे तो दिया है वो एंगल ये वाला रहता है, ये वाला रहता है, तो बहुत ये हाँ, ये बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल से आपने लिया था ये वाला। मैम जी। ये मैम टाइगर एंड कब, टाइग्रेस एंड कब, टाइग्रेस विद हर कब। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ मैम। ये रणथंभौर का था क्या, टाइग्रेस का? नहीं, नहीं मैम, ये ग्वालियर जू का था। ओके, ग्वालियर जू। ग्वालियर जू। जी जी ओके। जी। ये भी जू का है। कब, ये अराउंड 2 या 2.5 महीने का, 3 महीने का, जब पहली बार इसको बाहर निकाला था केज से, तब मैंने फोटो लिया था इसका। वो इनोसेंट दिख ही रहा है एकदम। Yes, उसको कोई आइडिया नहीं है कि बाहर क्या है दुनिया में। ये मैम हमारा ग्वालियर का टाउन हॉल है। अच्छा, काफी दिख रही है जी। हाँ, ये बर्ड मैम काफी, ये भी रेयर बर्ड है। ये स्पॉट बेलीड स्टारलिंग है मैम। स्टारलिंग कई बर्ड्स आती है, लेकिन ये स्पीशीज बहुत रेयर है, और ये उत्तराखंड में मुझे मिला है। अगर नैनीताल आप जाएंगे, नैनीताल के थोड़ा और नीचे डाउनवर्ड जाने पे सातताल नाम की एक जगह है, अगर आपने सुना हो। तो सातताल में क्या कहते हैं, 7 तालाब हैं टोटल मिला के। काफी अच्छी पीसफुल जगह, छोटी सी जगह है। तो वहाँ अच्छी बर्ड्स की एक्टिविटी दी जाती है, क्योंकि वहाँ क्राउड कम है, पब्लिक कम आती है वहाँ। तो हम लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, तो बर्ड्स थोड़ी एक्टिव रहती हैं। कितना एक्टिव दिस इज पोज है अगेन। वो वाला। पोज बड़ा यस एक्टिव था मैम। वो वाला। जी जी जी, इन फ्लाइंग, एक्शन। जस्ट अबाउट टू फ्लाई। यस जी जी। यस, टेक ऑफ, अबाउट टू टेक ऑफ। यस मैम। ये एक पोर्ट्रेट है एक बर्ड का, इसका नाम है ब्लू विंग्ड मिनला। ये भी हिमालयन बर्ड, इसलिए मेरे पास हिमालयन बर्ड्स मिलेंगे या वेस्टर्न घाट्स की बर्ड्स मिलेंगे। ये सनसेट के टाइम पे एक प्लेन लैंड कर रहा है एंटेनो 30 ग्वालियर एयरपोर्ट पर। टाइग्रेस एंड हरकत। मैम एक ये फोटोग्राफ काफी पसंद किया गया था मेरा। बीएसएफ टेकनपुर में प्रैक्टिस चल रही थी, तो वहाँ ट्यूबलाइट्स का वो लगाया हुआ था, उसके उस पर आग लगाई हुई थी, एक राउंड जो था ना उसमें। तो बाइक ने जंप किया, और एकदम जंप करके ट्यूबलाइट्स को ब्रेक करते हुए आग के बीच में से निकला। और इस फोटोज को काफी मतलब अकोर्डिलेशन मिला था, तो काफी लोगों ने पसंद भी किया इसको। और इसके लिए मैम फास्ट आपको शटर स्पीड रखनी पड़ेगी, और जूम लेंस भी आपको अच्छा लेना पड़ेगा, क्योंकि काफी दूर का शॉट है ये। तो इसलिए मैम कैमरा प्लेज रियली अ गुड रोल, नो डाउट अबाउट इट। ये मैम लैंडस्केप्स हैं ढिकाला कॉर्बेट के। आप में से मैम, आप कॉर्बेट गए कभी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? सुना है बहुत। जी जी नहीं जी। नहीं, अच्छा, तो जिम मैं कॉर्बेट में गया हूँ मैम सर। ढिकाला, सर आप गए? हाँ सर, हम अनुराग। लोग गए थे। हम लोग अच्छा गए थे अच्छा सर, लेकिन हम लोग वहाँ धिकाला में रुके नहीं थे। हम अच्छा डे अच्छा। टूर करके आए थे, पर धिकाला में ही टाइगर दिखा था। हाँ सर, ढिकाला में एक्चुअली सबसे अच्छा जोन उसका ढिकाला ही जोन है। और ये ढिकाला रेस्ट हाउस के सामने का व्यू है। लैंडस्केप्स काफी अच्छे आते हैं, और ढिकाला में आपको रेस्ट हाउस में बुकिंग के लिए 2-2 महीने, 3-3 महीने पहले से बुक करना पड़ता है। उसमें बहुत टफ है बुकिंग उसका।
तो ये ढिकाला का लैंडस्केप्स है, ये टाइगर्स के कप खेलते हुए प्लेइंग, दिस इज अगेन जंप करता हुआ टाइगर का बच्चा, छोटा बच्चा जी। ये रियल मतलब ढिकाला का टाइगर है, टाइगर ये भी सब एडल्ट है, ये ढिकाला का रियल जंगल का टाइगर है। और टाइगर को मैम रियली जंगल में देखना एक अच्छा एडवेंचरस फील आता है इसमें। और समटाइम्स दे कम सो क्लोज कि आप ओपन जिप्सी में हाथ बढ़ा के टच भी कर रहे हैं, उनको इतना पास हो जाते हैं, लेकिन दे नो कि अटैक करना है कि नहीं करना, बट एडवेंचरस है ये। अभी टाइगर जंप करता हुआ, बिग कैट, ये बिग कैट में ढिकाला की है, कॉर्बेट की, और इसका नाम है पार वाली, इसका पार वाली का नाम रखा हुआ है। वहां मैम दो टाइगर से बड़ी फेमस है, जिनका नाम, इसका नाम पार वाली इसलिए कि नदी के पार रहते हैं, इसका नाम पार वाली पड़ गया इसका नाम इसलिए। कि रॉक्स और भी एक, कितने बढ़िया है, रॉक्स हाँ मैम, थोड़ा ये थोड़ा रॉक्स के, व्हाइट रॉक्स के ऊपर फोटो मिलना काफी टफ हो जाता है, लेकिन लकीली मुझे मिल गया। और एक दूसरी टाइग्रेस जो है उसका नाम है पेड़ वाली, क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ जाती है इसलिए उसका नाम पेड़ वाली जी। और ऐसे ही मैम पन्ना में एक टाइग्रेस है, उसका नाम मनचली रखा है, मनचली, क्योंकि उसका तो अपना अपनी टेरिटरी छोड़ के कहीं भी चल जाती है, जहां उसका मन करे वहां चली जाती है वो, इसलिए इसका नाम मनचली, इस तरह से नाम रखे गए हैं इनके। so these tigers mark the territory, संजय, how do we come to know? या ये एक दूसरे की टेरिटरी में जाते हैं, और या फिर यूरिन की स्मेल से, जैसे डॉग्स का होता है वैसा कुछ जी रहता है क्या? कैसे कैसे हाँ, पता चलता है? एक्चुअली मेल टाइगर अपनी टेरिटरी बना लेते हैं, टाइगर्स तो खैर उनकी भी टाइगर टेरिटरी रहती है, लेकिन मेल मेल टाइगर्स में ज्यादा फाइट होती है। और ये तो एक तो यूरिन स्प्रे करके अपनी टेरिटरी मार्किंग करते हैं, और दूसरा मैम एक ट्री, कोई पर्टिकुलर ट्री होता है, उसके ऊपर ये खड़े होके दोनों हाथ से स्क्रैच करते हैं, ये फैक्ट है मैम। जिस मतलब जितना Okay. हाइट तक जाएगा उस पर स्क्रैच करते हैं। जब नया टाइगर एंट्री करता है उनकी टेरिटरी में, तो वो सबसे पहले मैच करता है कि मैं उसके बराबर हूँ या उससे छोटा रह गया हूँ। अगर उस Oh, टाइगर उससे छोटा रहेगा तो वो एंटर नहीं करेगा, वापस चला जाएगा। सही oh, बात। अदरवाइज आगे फाइट करके फिर वो टेरिटरी अपनी बना लेगा, उसको भगा देगा। तो ये उनके रूल्स हैं। अनसेड अनसेड एग्रीमेंट है उनका, बोलने की जरूरत यस, नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। correct. लेकिन मैम टाइगर के बारे में कहा जाता है कि नॉर्मली वो मैन ईटर नहीं है, तो वो अटैक नहीं करता, क्योंकि हम लोगों ने इवन ढिकाला में, हम लोगों ने इवन पीलीभीत टाइगर ने, दुधवा टाइगर ने पैदल मूव किया है टाइगर के एरिया में, जो कि वहाँ आसपास टाइगर का मूवमेंट भी था, लेकिन अटैक नहीं करता नॉर्मली। अगर आपको डिस्टर्ब ना करें या परेशान ना करें, या वो मैनीटर है तो अटैक करेगा, अदरवाइज नहीं करता। दिस अगेन इज अ ब्यूटीफुल बर्ड कॉल्ड ब्लू थ्रोटेड बार्बेट, जो हमने पहले देखा था इसका फोटो। इनकी आई साइज का भी कुछ होता है क्या? आई साइज, सम ऑफ देम हैव बिगर देन अदर्स। नहीं, उसका कुछ ऐसा खास मतलब मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है ओके। जी। ये मैम बहुत एक कॉमन वर्ड है, अगर आप इसको पहचान पाए कोई तो मैम पहचान सकते हैं। Woodpecker, यस woodpecker. मैम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये वुड पैकर ही है। और ये वैसे तो बहुत कॉमन है, लेकिन इसको साइट करना, क्योंकि ये शाही होता है, छुपते रहता है, तो इसे देखना बड़ा मुश्किल होता है इसको। तब होता है जी। टाइगर यानी जी मैम, ये वाह, बर्ड है जकाना, ये बहुत फ्लाइंग में फेमस हुई है, ये आपकी जी। अभी बहुत फेमस हुई थी ना, ये बर्ड इन फ्लाइट। हाँ, ये ऐसा मैम कुछ समय पहले हाँ। भारत ने भी निकाला था ये फोटो, ये वाला सेम फोटो था भास्कर ने। तो बर्ड का नाम क्या है? इसका नाम है मैम जकाना है। ये जकाना में दो तीन बर्ड स्पीशीज आती हैं। इसका पूरा नाम है फिजन टेल्ड जकाना। ब्रीडिंग के टाइम पे इसकी मैम टेल और लंबी और वाइट हो जाती है, तो इसलिए इसका नाम फिजन टेल्ड जकाना है। ओके। ये रेनी सीजन में अभी आप जैसे ग्वालियर के सराउंडिंग आसपास देख जाएगी आप। तो सुंदर है। देन मैम अनदर वेरी रेयर बर्ड, इसका नाम है मैम नाइट जार है ये, जेडन्स नाइट जार। और मैम नाइट में ही मोस्टली एक्टिव होता है ये। ये आउल जैसा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, कुछ कुछ मैम, बट आउट से मतलब डिफरेंट है काफी, लेकिन हम्म। ये नाइट में एक्टिव होता है, इसलिए इसका नाम नाइट जार है। और ये फोटोज मैंने जो मुझे मिला है मैम, ये वेस्टर्न घाट्स के जंगलों में मिला है। हम लोग रात को 10:30-11 बजे तक इसको फोटो लेने के लिए हम जंगलों में भटक रहे थे, जहाँ नील ग्रास थी, और इवन स्नेक्स का भी घर
खतरा था। हम्म। बट हमारे साथ एक गाइड था, फॉरेस्ट गार्ड था, तो वो हम लोग ले गए और हम लोगों ने टॉर्च की लाइट में ये फोटो लिया इसका, ठीक है। हाँ, मैं पूछने फिर वाली आने थी, के इस पे तो फ्लैश लाइट ऐसा लग रहा है। जी, हालांकि ओके। फ्लैश लाइट में अलाउड नहीं होता वाइल्ड लाइट में यूज करना, बट हाँ, समटाइम्स राइट। हम साइड, थोड़ा सा साइड में फोकस डाल के, ताकि इस पर थोड़ी हम्म। रोशनी आ जाए। हम्म। ये मैम हमारा शिवपुरी का नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क। हम्म सेलिंग जी क्लब। जी, सेलिंग क्लब। ये मैम अच्छा। बताइए कहाँ का? ये तो अपना वो है मनीषा ना, मैम, नहीं, ओरछा का। नहीं 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 मैम, अपने ग्वालियर का मोती महल है। अच्छा, ओके। मोती बहुत दिनों जी से नहीं देखा मैंने। जी हाँ, जी जी। एनीवेज, करेक्ट। आगे बहुत चलते सुंदर था। हैं। हम्म। जी, ओह माय गॉड, ये बटरफ्लाई सी की पत्तियां थी। देखिए बटरफ्लाइज है मैम। ओह वाह, सब बैठी हुई हैं। हाँ, पडलिंग बोलते हैं इनको। ये क्या है कि पानी उसमें सक कर रही है नीचे से, ओके। गर्मी का, तो क्या ग्राउंड से कलर, जो पानी सक करते कितना हैं ये। यूनिक कलर है ना बटरफ्लाई का ये। हम्म जी जी। देन ओह, That पीकॉक। was Devansh who was उड़ते। cycling. Devansh is Sanjay's son. अच्छा। यस मैम। हाँ। बट He's मैम a फोटो मैंने management. इसलिए लगाया। He's a हाँ। management यस, student. Sanjay. हाँ यस, यस कंप्लीटेड हिज एमबीए। अभी कनाडा में बैंक में जॉब कर रहा है, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा में जॉब करता अरे वाह। Okay. है जी। So लेकिन he मैम was फोटो born as a 4.5 kg baby. अच्छा। Just few यस days, just few days ahead of my son's ओह माय birth. गॉड, दिस यस बिग यस यस। बिग बेबी। Big baby, big baby. Yes. बहुत बढ़िया है बट मैम शॉट। फोटो का सिग्निफिकेंस ये है कि ये, इसको हम बोलते हैं पैनिंग शॉट, पैनिंग फोटोग्राफी बोलते हैं। इसमें मैम जैसे हमको ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, नॉर्मल स्पीड से। ये आसपास का सराउंडिंग जो है ये ब्लर हो जाता है, और ये हम्म। सब्जेक्ट हमारा शार्प रहेगा। तो हम्म। ये हम लोग पैनिंग फोटोग्राफी बोलते हैं इसको। हम्म। मैं पीकॉक जंप करके अपना एक पर्च पे जाता हुआ, ये हम्म। ग्वालियर का ही फोटो जी। क्योंकि मैम फ्लाइंग शॉट लेना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि फोकस में आना, हाँ। ट्रैक कर पाना थोड़ा टफ होता है मैम, उसमें हम्म। कैमरा और ट्रैक दोनों ही रोल प्ले करते हैं। वाह। ये भी फ्लाइंग, मतलब पीकॉक का फ्लाइंग बहुत कम मिलता है देखने को, क्योंकि हम्म। इससे बहुत हैवी होती है बर्ड, और ये फ्लाइंग बहुत कम ही यूज करती है। जब तक इसको इमरजेंसी ना हो या कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, तभी ये मोस्टली तभी उड़ती है, अदरवाइज तो बहुत कम उड़ती है। हम्म। जो ये फैला हुआ है वो क्या है उसका पार्ट? विच वन मैम? ये Orange color का आगे की तरफ, मेल? बॉडी के उधर। हाँ ये। ये ना ना, कहीं नहीं मैम। नहीं, जो ये ट्रंक के जस्ट ऊपर है। जो ऑरेंज स्प्रेड आउट है ना, जो कोम जैसा। ये हाँ ये वाला मैम, ये हाँ हाँ। हाँ। उसके विंग्स का पार्ट है मैम। विंग्स जब पूरे अच्छा। खुलते हैं तो लाइक इस तरह से खुलते हैं। तो नेक्स्ट फोटो पूरा। में देखिए, ये देखिए। ओ वाह। जी जी। उसके पीछे जो है वो भी विंग्स हैं, और वो पीछे टेल अलग है है। मैम, ये विंग है उसका, ये टेल है मैम पूरी लंबी। और नॉर्मली हाँ। मैम आप देखेंगे तो टेल जो है मेल में ही होती है केवल, बड़ी टेल। हम्म। फीमेल की टेल बहुत छोटी होती है, और जब उनका मीटिंग सीजन होता है तब ये बड़ी टेल से डांस करके फीमेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। पर विंग्स में दो कलर्स है ना, ऑरेंज और ब्लैक। और भी कलर होंगे मैम, वो दिख नहीं रहे, और भी कलर्स होते हैं इसमें। जी। ओके। और मोस्टली हाँ। मैम आप बर्ड्स में देखेंगे तो बर्ड्स में थोड़ा सा हमारे ह्यूमन लाइफ से वाइस वर्सा ये अपोजिट चलता है। बर्ड्स में हम्म। आप देखेंगे मेल ज्यादा खूबसूरत होते हैं, क्योंकि हम्म। हमारे यहाँ लाइफ में थोड़ा उल्टा होता है, तो वहाँ हम्म। मेल ज्यादा होते हैं और फीमेल उतना सुंदर नहीं संजय जी, होती। ये बताओ, इस तरह का तो कलर हमने मोर का देखा नहीं जैसा हम्म। इसमें दिख रहा है। हम्म। सर, सर लकीली कभी कभी ये मिल जाता है, क्योंकि लाइट भी अच्छी पड़ रही है इस पर, तो इसके कलर्स खुल के पूरे सामने आ रहे हैं। अरे तो पर ऐसा मोस्टली तो कभी, मतलब ये कौन सा ऑरेंज कलर और ये ब्लैक कलर, ऐसा तो क्या? ये साइड वो तो व्यू मतलब जो दिखा दो। नहीं, हाँ मतलब वो तो इसके जो पंख होते हैं वो तो मिक्स होते हैं ना, वो तो हमने सबने देखे हैं, ग्रीनिश और पर्पल और वो ये टेल wings पर्पल। है। है भरत, वो ही तो सेइंग सब दैट्स टेल द के होते टेल। हैं, हाँ। हम्म, तो हम टेल ही सर, देखते हैं, मतलब ये नहीं देखते हम ज्यादा। शायद शायद सर आपने फ्लाइंग वाला शॉट कभी देखा हो, फ्लाइंग तो ये पिकॉक को, ये अगर सिर्फ तो उड़ते शायद हुए ही दिखता है। उड़ते हुए सर पंख उसके खुल के सारे सामने आते हैं ना, अदरवाइज और वो अंदर छुपे रहते हैं। इसके पहले जब वाला उड़ेगा शॉट जो है, उसके पहले वाला जो अभी सेमाई सेमाई ओपन हाँ। है, ये कितना सुंदर है, मतलब जी जी। अमेजिंग, क्या मैकेनिक्स है ना उसकी।
इसको मैम फ्लाइंग में देखना बहुत टफ है, बहुत मतलब रेयरली दिखता है फ्लाइंग करते हुए। मैं तो उसके अच्छा, मैकेनिक इसका सोच मतलब रही हूँ मोर कि के जो पंख होते हैं, मोर के जी जो पंख होते हैं नॉर्मली हम देखते ही नहीं है। नहीं सर, हाँ, अगर डांस हम करेंगे तब पूछते हैं। दिखेंगे आपको। अगर हाँ, हम डांसिंग पीकॉक आपको दिख जाएगा ना, हाँ, तो वो तब काफी कुछ कलर्स दिख जाएंगे उसके, खुलता है जब नहीं तक। नहीं, डांस करते वक्त भी कहाँ, वो तो उसकी टेल वाला ही वो जो होता है वही तो दिखता है हाँ फिर शायद। टेल वाला, हाँ, लेकिन नीचे से अगर ध्यान से आप देखेंगे तो नीचे से थोड़ा सा पार्ट इसका भी खुलता है, क्योंकि टेल इसकी बहुत हैवी, तो उसको सपोर्ट के लिए विंग चाहिए होते हैं। जो आप हाईलाइट कर रहे हैं वो विंग्स है, वो हम लोग कम देखते हैं विंग्स। हाँ विंग, यस मैम, यस मैम, जी। चलो ठीक है जी। मैं एक डिफिकल्ट स्टूडेंट हूँ यार, मुझे कोई चीज समझाना मुश्किल होता है सबको। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस चीजें जो है शुरू से पूछता आता है। जी जी जी। भारत, किसी ने बोला है कि गुड वन हु क्वेश्चन। नोज डजंट स्पीक एंड वन हु स्पीक्स डजंट नो। किसी ने कल ही बोला है। इसकी बुक टॉक में ये लाइन थी, वन हु नोज डजंट स्पीक एंड वन हु डजंट स्पीक नोज एवरीथिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। मैम सर ये देखिए, ढेकाना का फैमिली फोटोग्राफ है, टाइग्रेस विथ हर 2 कप्स। ओह माय गॉड, क्या हेड ऑन सुन। मिल गया हमको फोटो ये। उसमें ये मदर टाइग्रेस, मदर बच्ची को देख रही है और फादर सामने देख रहा है, ये भी जी नोटिस जी, किया है। एक्चुअली मैम मदर तो केवल ये है, अच्छा, ये ये मदर दोनों है। बच्चे, ये दोनों बच्चे, जी अच्छा, जी जी। ओके तो ओके। ये मदर है मैम। मदर इज फोकस्ड, वेरी हाँ, फोकस्ड। और ये पीछे इसके 2 कब्स हैं बच्चे। हम्म। और जब मदर बच्चों के साथ होती है तो काफी डेंजरस होती है मैम वो, तो किसी भी हम्म। टाइम कभी अटैक राइट कर सकते बच्चों की राइट। सेफ्टी के हम्म। लिए। ये वो सेम है, मदर एंड हमने अभी कब्स। अभी प्रियंका प्रियंका चोपड़ा से सीखा है टाइगर के बारे में ज्यादा, जब से उसको ये नई मूवी आई है ना प्रियंका की, टाइगर्स ऑफ अच्छा अच्छा, इंडिया। आपने देखी नहीं देखी? मैम नहीं देखी आप टाइगर्स ऑफ इंडिया। आप सब जरूर, हाँ, ये इस साल जो अर्थ डे पे आई थी वो आप सब जरूर अच्छा, देखिएगा। प्रियंका चोपड़ा जरूर ने जरूर। नरेट किया है टाइगर्स ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा, जरूर जरूर, मैं हम्म। चेक कर, बिल्कुल। ये भी एक बड़ी रेयर बर्ड है मैम, फैनटेल बोलते हैं इसको, व्हाइट थ्रोटेड फैनटेल। बिकॉज हम्म। इसकी टेल आप देखेंगे ये फैन के शेप में खुलती है, इसलिए इसका नाम फैनटेल पड़ गया। वाह। नेक्स्ट, दिस वन इज ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाई कैचर। ये मैम हम्म। काफी चीनी, बहुत छोटी बर्ड होती है और बहुत एजाइल होती है, बहुत फास्ट होती है, एक जगह रुकती नहीं है, बड़ा मुश्किल से ये मिलेगी। अब इसका हेड आप देखेंगे ग्रे कलर का है, इसलिए इसका नाम ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाई कैचर है। अनदर वेरी रेयर बर्ड और माइग्रेटरी बर्ड है मैम ये। हम्म। बहुत ही सुंदर। ये मैम कुछ लैंडस्केप्स हैं। हम्म। इंडिया के थे या बाहर के? नहीं ये मैम, ये तो नॉर्वे का है मैम। ओके ओके। ठीक है, ये हमारे इंडिया की साइड से हम्म। बहुत ग्वालियर सुंदर। की, जी। और ये फोटोज मैं बता रहा था आपको मैम, इसको मैम लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी जो बोलते हैं ना, ये जो लाइट्स दिख रही हैं ये गाड़ी की हेडलाइट्स हैं। हम्म। तो स्पीड से निकली गाड़ी और हमने स्लो शटर स्पीड में ये फोटो लिया है, तो इसलिए ये इस तरह का ट्रेल बन गया, लाइट ट्रेल बोलते हैं इसको। तो ये गाड़ियों की हेडलाइट दिख रही है मैंने। जैसे स्काई में प्लेन का अपन देखते हैं पीछे वो। हाँ जी, जी हाँ, वाह। ट्रेल बन जाता है। ये भी मैं फ्लाइंग अरे बर्ड, वाह। ओ माय टुकू, गॉड। उसके रिफ्लेक्शन कितने बढ़िया थे उसमें। यस मैम, लाइट अच्छी पड़ रही है। हम्म। अमेजिंग। अपार्ट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ मैं एविएशन फोटोग्राफी भी करता हूँ। तो हम्म। समटाइम्स जैसे कुछ इंडियन एयरफोर्स के लिए मैंने फोटोग्राफी की हुई है, जब उनका एयर शोज वगैरह होते हैं तो उसके हम्म। लिए। ये मैम अरे नीलकंठ है हमारा, नीलकंठ हिंदी में बोलते हैं इसको। हाँ। ओ माय गॉड। और इंडियन रोलर बोलते हैं, इंडियन रोलर बहुत कॉमन है। थोड़ा भी हम बाहर जाएंगे तो खेतों में आसपास मिल जाता है, और दशहरे को इस दिन इसको देखना बड़ा शुभ माना जाता है। इंडियन, हम्म। मैम इंडियन रोलर नाम क्यों पड़ा है इसका रोलर, क्योंकि ये होता क्या है कि जब मेल फ्लाई करता है ऊपर जाता है और रोल करते हुए वापस आता है नीचे, फीमेल को अच्छा। अट्रैक्ट करने के लिए, ओके। इसलिए इसका नाम रोलर पड़ गया मैम। जी। तो कंठ तो थ्रोट होता है ना, कंठ? नहीं मैम, एक्चुअली क्या है, इसकी एक स्पीशीज और है, वो यूरोपियन रोलर है।
तो अच्छा, यूरोपियन रोलर का कंठ नीला होगा, ओके ओके के नाम से इसका नाम पड़ गया नीलकंठ। ओके। असली नीलकंठ तो यूरोप में मिलता है, वो हमारा हम्म। माइग्रेटरी बर्ड है, वो माइग्रेशन में ही आता है विंटर्स। इसका लेकिन उसकी ब्रेस्ट है जो एकदम ब्लू, फ्रंट में जो है एकदम आगे की हाँ तरफ। फेदर, हाँ ये फे- मैम नीचे है अंडर पार्ट, और अदरवाइज ये ब्राउनिश ऊपर, ही रहेगा। जो ऊपर बॉडी पे कर्व पे है ब्लू, दिस ब्लू, वन, ये क्या पार्ट है? हाँ ये मैम फेदर्स है इसके, दिस वन नहीं ये नहीं, फेदर्स जो है, ये आपने बताया ये बॉडी में जो कर्व पे है ब्लू, उसका बॉडी पार्ट क्या है वो फ्रंट में? बेली बेली। और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर हाँ ये। ये फेदर्स है मैम, फेदर। अच्छा। जी जी। और जो यूरोपियन रोलर होगा वो यहाँ पूरा ब्लू होता है। बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। शेप। ये हमारा ब्लैक नेक स्टॉर्क है मैम, ये भी रेयर बर्ड है और काफी हम्म। कम देखने को मिलती है। काफी बड़े बड़े साइज की बर्ड है मैम, ब्लैक नेक स्टॉर्क। दिस वन इज लीफ बर्ड। लीफ जैसा ही दिख ड्रॉपलेट, रहा है, ग्रीन। जी हाँ, करके इसके ड्रॉपलेट्स भी दिख रहे होंगे आपको। हाँ, ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं एकदम। ब्लैक नेक स्टॉर्क इन फ्लाइंग। हम्म। वाह। ये सब मैम एविएशन है जी। पैराशूट। मैम इसमें भी आप देखेंगे तो लाइट हाँ। ट्रेल फोटोग्राफी आपको दिखेगी, ये हेडलाइट्स दिख रही है गाड़ियों की, और ये हम्म। टेल लाइट दिख रही है, रेड कलर की टेल वाह, लाइट्स। और कितनी इसके लिए मैम थोड़ा सा, प्रोमिनेंट है वो लाइट्स, लाइंस। जी हाँ जी हाँ, इसको मैम लाइट ट्रेल या लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी बोलते हैं। ओके। और ये भी होगा, इसके लिए आपको ट्राइपॉड, स्टेडी ट्राइपॉड चाहिए ताकि जरा भी हिले नहीं हो, शेक नहीं हो, हम्म। अदरवाइज ब्लर हो जाएगा मैम। ये भी देखिए, ये हाँ, रेड ये तो लाइट्स आपको बहुत ब्यूटीफुल। इसको जी, देखने ये छाया हमारे आना पड़ेगा हाँ, ग्वालियर। और वो लाइट्स जो ऊपर लाइट्स हैं वो क्या स्ट्रीट लाइट है जो सन ये जैसे तो दिखती है रेस? ये फोर्ट तो पर मैम स्मार्ट सिटी बहुत में लाइट लगा हुआ है, फसाड लाइट्स। हाँ, नहीं, पर जो ग्वालियर स्टार फ्रंट जैसा है दिख रहा है, स्टार जैसा वो इस पर, street- ये तो मैम मैंने स्ट्रीट लाइट है, लेकिन क्योंकि लेंस का अपर्चर थोड़ा स्लो था इसलिए ऐसा इफेक्ट आ जाता है उसमें। अच्छा, वो तो तभी नॉर्मल है। लाइट कैसी दिख रही है ना, जी जी, स्टार जैसी। ये और स्टार ये जैसे। ये जो वहां पे रॉक्स पे कुछ फेस बना हुआ है क्या? नहीं फेस नहीं मैम, राइट साइड पे, हाँ उधर ऐसा लग नहीं रहा है कि नहीं नहीं, फेस बना है। हाँ, अच्छा। मुझे लग रहा होगा फेस जैसा, बट नहीं फेस नहीं मैम, तो ओके। स्ट्रक्चर ये स्टोन ये स्ट्रक्चर है। ग्वालियर का है फोर्ट। मुझे ये और स्टोन लगा कि मिस्टर संजय का फोटो है इधर, वहां ऐसा लग रहा नहीं नहीं नहीं। मैम आप ग्वालियर आए कभी? नहीं, मैं नहीं आई अभी तक। अब ये आएगी देखना पक्के से। हाँ एक बार हाँ, बस। बहुत ही सुंदर फोटोज है, बहुत ही। मैडम वो फेस मुझे भी दिखा, वो आई है ना, अंडरस्टैंड आप जो बोल रहे थे। है ना। जी हाँ। सर। देखिए वहां पे थोड़ा सा कर्सर अभी ऊपर, हाँ ये एग्जैक्टली हाँ हाँ, और आपने मैंने भी अभी स्पेशल नोटिस किया इफेक्ट जब किया आपने है। बताया ना, तब लॉर्ड नोटिस किया। शिव जी। जी जी। बहुत ही सुंदर है ये वाला फोटो। अरे वाह। ये ग्रे हेरॉन है, लैंड कर रहा है स्टोन पर, हम्म। पानी के बीच में। मेजेस्टिक। जी थैंक यू। ओह। मतलब जंगल में हम लोग जाते हैं तो नेशनल पार्क में टाइगर के अलावा हमको इस तरह के एक्शन शॉट्स भी मिल जाते हैं। उसका कलर तो कितना मजेदार है ये बंदर का। जी जी। गोरा बंदर दिख रहा था। ये मैम वल्चर है, हम्म। सिनेरियस या ब्लैक वल्चर। ये बहुत रेयर बर्ड है, ये राजस्थान का फोटो है, और हम्म। काफी रेयर है, काफी रेयर। इसमें भी मेल फीमेल है क्या कि नहीं बोल तो मैम सकते? इसमें एग्जैक्टली मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन मेल फीमेल तो है ये, कौन सा है मैं नहीं बता सकता। दे आर जी जस्ट फ्रेंड्स। यस हम्म। जी। नो में जस्ट। ओह माय गॉड, गाते हुए। ये हाँ ये भी रोजी स्टारलिंग बर्ड का नाम है, रोजी स्टारलिंग। ओके। इन सब बर्ड्स रेयर है मैम, इनके लिए काफी आपको जंगल में घुसना पड़ता है, घूमना पड़ता है, हम्म। करना पड़ता है। अनदर अरे। फीडिंग शॉट। जी वेरी नाइस, वेरी पर नाइस। बच्चों की साइज पेरेंट जितनी है ना बर्ड्स में, ऐसे ऑल बहुत जी छोटे नहीं जी दिख जी। इवन मैम, इवन आप टाइगर में आप काउंट करेंगे, टाइगर देखेंगे तो टाइगर में सब एडल्ट होने, सब एडल्ट भी साइज ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाता है, ऑलमोस्ट रहे। बराबर। ये मैंने वाह। एक माइग्रेटरी बर्ड है,
इसका नाम है नॉर्दर्न शाउलर। ये हमारे यहाँ साइबेरिया से, चाइना से, मंगोलिया से विंटर्स के टाइम में आता है और फरवरी या मार्च में वापस चला जाता कलर्स कितने स्पेक्टेकुलर है उसके, तीन। है। जी जी। वाह। इसका मुझे ध्यान है कि संजय मुझे है ना शिवपुरी में बताया था कि इसके पीछे जो वहाँ के जो रहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स जो आती है, तो इसको शायद ये लोग कोई लूप डालते हैं कहीं से एंड टू मार्क अच्छा। देम। देयर आर थ्री पेयर्स इन इंडिया, ऐसा कुछ है। तो ये उसी की ड्रेस पहन के, जैसे बर्ड ने कपड़े पहने ऐसे वो कपड़े पहन के वो जाके वो फिर उसको लूप करते हैं शायद, अच्छा। ऐसा कुछ है। दिस हाँ, वो इज द जीपीएस स्टोरी ट्रैकिंग। टोल्ड मी। हाँ, ये सेलिंग क्लब में उन्होंने मुझे बताया था ये। अच्छा अच्छा, जी जी। हाँ, जीपीएस इसका ट्रैकिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट में। कुछ बर्ड्स करते हैं। जी हाँ। हाँ, वो छोटा लोग रिंग मूवमेंट। जैसा कुछ डालते हैं उसमें। जी हाँ जी हाँ। ओह। अगेन इज ए वेरी कॉमन वर्ड। इसका नाम हॉर्न, मैडम लोग कंफ्यूज करते हॉर्न। थे वुड पैकर। नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं, ये है ओके। हुपो। हिंदी में इसको हुदहुद बोलते हैं, हुदहुद। और इंग्लिश में नाम है हुपो, HOOPOE, हुपो। FOOPLE। HOOPOE, अच्छा। हुदहुद। एच। एंड दिस अगेन नीलकंठ, इंडियन रोलर। ये भी मैम रेयर, क्योंकि लेपर्ड बड़ा शाई होता है मैम, इसका फोटो लेना बड़ा टफ होता है। तो लकीली जयपुर में झालाना अगर जाएंगे, झालाना सेंचुरी है, वहाँ लेपर्ड्स काफी हैं, तो वहां दिख जाते हैं लेपर्ड्स। तो सुंदर। और मैम इसका नाम है बहादुर। मैं और बताने वाली थी, मैंने अपनी शर्ट भी लेपर्ड प्रिंट पहनी है। शो मैंने ग्रेट मैम। ज्यादा बताया नहीं पहले पर। जी जी जी। ऑन द सब्जेक्ट, ऑन द पॉइंट। ऑन द पॉइंट। हाँ, तो मैम ये बहादुर है। और ये राणा, इसका नाम राणा है, राणा वाह, नाम रखे हैं। जी तो जी। सुंदर है राणा। आइस कितनी सुंदर है। ओ माय गॉड। यस, ये मैम जंगल कैट है, जंगल कैट। ओके। इसके बारे में कहते हैं कि जितना टाइगर साइटिंग रेयर है, उससे ज्यादा साइटिंग इसकी रेयर होती है मैम, ये बहुत कम दिखती है। ब्यूटी। जी जी। ओह। वुडपेकर। जी जी जी। इन एक्शन। ओ। एंड आर फ्लेमिंगोज मैम। हाँ, और ये फोटोग्राफ ग्वालियर का ही है, काफी समय पहले ग्वालियर आते थे, अब आना बंद हो गया इनका। तो ये इनका भी ट्रांजिट। कलर का कुछ होता है ना कि ये वाइट सी थ्रू होते हैं, पर कुछ कलर्स इनके पिंक क्यों दिखते हैं ये। नहीं नहीं, पिंक तो आई थिंक मैम कलर ही होता है। इसमें एक दूसरी स्पीशीज होती है, ये मैम ग्रेटर फ्लेमिंगो है। एक ओके। दूसरी स्पीशीज की लेसर फ्लेमिंगो, वो ज्यादा पिंक और ज्यादा रेड होता है। उनका इससे कुछ ज्यादा। हाँ, एलगी का होता है कुछ, समथिंग मेक्स देम पिंक। भूल मे गई। बी मैम, नहीं हम्म। मुझे नहीं। जी। पोलर बेयर तो और फ्लेमिंगो दोनों में कुछ होता है, ये ट्रांसपेरेंट टाइप होते हैं ये लोग, पर अच्छा अच्छा। समथिंग मेक्स देम हैव कलर। लाइट रिफ्लेक्ट करके, हाँ, ब्लड वेसल्स हम्म। को शायद। मे बी मैम, दिस इज अनदर वेरी रेयर बर्ड। ये खलीज फीजेंट है और हिमालयन बर्ड है मैम। ओके। खलीज फीजेंट। यस मैम। पीजेंट ना। फीजेंट, मेल हम्म। फीमेल है। दिस हाँ, वन इज मेल, दिस इज फीमेल। ये टर्की फैमिली के लग रहे हैं। मैम टर्की यहाँ होता नहीं, हो सकता है उसका, ये फीजेंट फैमिली है। फीजेंट फैमिली पीजेंट। जी हाँ जी। पर फेदर्स कितने बढ़िया आपने कैप्चर किए हैं उनके, दोनों के यस मैम। फेदर्स। जी ओह हाँ माय जी। गॉड, अनबिलीवेबल। जी मैम, थैंक यू। बहुत ही, बहुत ही बहुत ही मतलब बढ़िया। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर। और ये तो हेड ऑन एकदम रेडी टू टेक द वर्ल्ड। स्टीयरिंग आई, मतलब आईज को हाँ। स्टीयर करने के लिए। ये फोटोग्राफर के फोटो रैंडम। लेंस को देखते हुए, जी कैमरा लेंस की तरफ देखते हुए चला रहा। जी। ओ, ये कैच रॉक किया। दिस में क्या कैच किया, पाँव में क्या सॉरी, पकड़ा है, पाँव में क्या पकड़ा है, फिश मैम, फिश। फिश फिश। ओ, यस। हेडेड फिश। हाँ, ये मैं पानी में डाइव तो जाती हूँ, पानी पर करके अपने क्लॉज से फिश लेके उड़ जाती हूँ ऊपर ही ऊपर। हम्म। फिश वाटर की तो बॉडीज 12 बज गई। हाफ हाफ ईटन फिश है मैम, हाफ ईटन। हम्म। तो इसकी भी मैम इसका नाम शेप है बहुत ऑस्प्रे। बढ़िया। क्या नाम है। जी, ऑस्प्रे। ऑस्प्रे, ऑस्प्रे। हाँ। जी जी।
यूएस में, यूएस एयरफोर्स के पास एक ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर भी है मैम। अच्छा। वो इसीलिए रखा गया क्योंकि ये काफी फास्ट और एजाइल है, तो इस वजह से ऑस्प्रे नाम रखा है उसका। हम्म। These are again flamingos, greater flamingos. हम्म। वाह। ये मैम फ्लाई कैचर है, वेरिडिटर फ्लाई कैचर। और ये उत्तराखंड और हिमालयन बर्ड है ना, हिमालय के एरियाज में मिलती ते सटल कलर्स हैं उसके। है। टाइगर का पोर्ट्रेट में नजर। फिर पीकॉक का फ्लाइंग सनसेट के टाइम पर, सनसेट ओह का माय बैकग्राउंड है गॉड। और फ्लाइंग अपोजिट सन था, मतलब इसलिए इसके हाँ, कलर्स, सिलूट अच्छा बनाने में है। बहुत बढ़िया है, बहुत। जी जी उसके हेड के जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, कॉक, वो भी बड़े सुंदर हैं। हाँ हेड, हाँ हेड पे जी हाँ, जी हेड पे जो तीनों है वो भी फ्लाइट में एकदम पीछे हो गए कोम, हो। कोम। पीछे हो गया जी। ओह वाह, दिस इज अमेजिंग। ये हम लोग ने जी। उसमें डाला है फ्लायर पे, आई थिंक। अच्छा अच्छा, जी हाँ जी हाँ जी। ये वो वाला है क्या? अच्छा। सॉरी मैम। नहीं, ये जो आपने भेजा था वही वाला है क्या? वो वाला है नहीं, ये अलग है। मे बी मैम, मे देखना पड़ेगा मुझे। ये जी ग्वालियर है, ये सभी ग्वालियर फोर्ट। यस, ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर अरे के। वाह। हम हम्म। आपको टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि आप हाँ, आइए। बहुत ही सुंदर है, नहीं अमेजिंग। टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। मनीषा को बोलेंगे 45th रियूनियन वहां करे अब। जी हाँ बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल, श्योर कितना श्योर। बढ़िया लिया है ना विंडो से। विंडो से हाँ मैम, हाँ जी। अरे वाह। नाइट व्यू है, रात का व्यू है। हाँ हाँ हाँ। साइड में सिटी, ग्वालियर सिटी दिख रही है आपको, ये फ्रंट है हमारा। हाँ, सिटी सिटी एट लाइट्स, नाइट। नॉर्मल सिटी मैम जी। अमेजिंग। दिस ओह। इज ब्लैक थ्रोटेड टिट। ब्लैक थ्रोटेड टिट, TIT टिट। टिट। इस ओके। वायलेंट टिट बर्ड है फॉर मैम टैट। ये। ओके। वाह। और मैम ये हमारे ग्वालियर की वाइल्ड लाइफ है। मनीषा मैम देखिए, लोग कहते हैं ग्वालियर वाइल्ड लाइफ नहीं है, लेकिन ग्वालियर की वाइल्ड लाइफ देखिए। ये सुंदर, वाइल्ड ये लाइफ। गजल है ना ये। नहीं मैम, ये गजल थोड़ा सा चेंज अलग होता है, ये ब्लैक बक है, काला हिरण। अच्छा, ब्लैक पॉट। काला हिरण जो हम्म। फेमस हुआ था, राजस्थान में शिकार किया हाँ था जिसका। हाँ, जो ये हमारे ग्वालियर के फोटो। इंडेंजर्ड स्पीसीज है शायद। उसके उसके हाँ हाँ, सींग बड़े डिस्टिंक्टिव होते हैं, सींग। हाँ। ये सर, Oh my जी God। सर, जी सर। उसके स्ट्रेट होते हैं, इसके राउंड घूमे हुए रहते हैं। इसको तो वेपन जैसे यूज कर सकते हैं आप एकदम। मैम ये वाह। फीमेल है दोनों, हम्म। ब्लैक। ब्लैक पक। जी। क्या ये भी नेचर मैम, है हमारा। ये हमारा ग्वालियर। हम्म। पोस्ट अच्छा। ऑफिस। यस, पोस्ट ऑफिस मैम। हाँ, अरे ये कितना बढ़िया है। यस मैम। ये गेहूं की क्या बाली, लेके जा रहे हैं? मतलब हाँ, गेहूं की गेहूं की बाली। बात। ऐसा तो लग रहा है मुंह में पकड़ा दिया उसको अपने। ना तो होली के सुंदर है। टाइम पर बाली आती है ना, तब ये लेके उड़ते हैं। हाँ, वेरी नाइस कैप्चर। ओ। ये ये तो मेरी वही पेट थी है, ना आपकी, आपकी पेट थी, ये हाँ। मेरी पेट है मैम। मैं पूछने वाली थी, हाँ। तो उसने तो बहुत ही रॉयल पोज दिया है। जी। हाँ। एक एंट्री गेट है मैम मोती महल का। अच्छा, जी ग्वालियर। वही टेल जी। लाइट्स, वापस वो टेल हाँ, लाइट्स दिखी उसमें। लाइट। अरे और मैम वाह। ये बर्ड काफी खूबसूरत बर्ड है। और ये हमारा MP का स्टेट बर्ड है मैम, ये मध्य प्रदेश अच्छा, का। क्या नाम? इसका नाम है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। अच्छा। पैराडाइज फ्लाई कैचर। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं दूधराज। कौन सा राज? खुद रहे। दूधराज। अच्छा, इनको तो पता ही नहीं था, दूधराज, एमपी में पड़े हुए। ये मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड है मैम ये। अरे वाह। और ये मेल है, मेल पूरा वाइट होता है। और हम्म। फीमेल रेड कलर की होती है मैम। डार्क अच्छा। रेड, ब्राउन रेड। ओके। ये मैम बर्ड है काफी, ये भी रेयर बर्ड है, इसका नाम है बार हेडेड गूज। अब अच्छा। आप देखेंगे इसके हेड पर दो बार दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, हाँ हाँ। इसलिए इसका नाम पड़ गया बार हेडेड गूज। ओके। और ये मैम मिलिट्री बर्ड है। ये विंटर्स में हमारे यहाँ आती है और वापस चली जाती है समर के टाइम में।
ओके। और मैम खास बात ये है कि दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है मैम ये। अच्छा। इट फ्लाइज एट द एल्टीट्यूड ऑफ 30,000 फीट, जिस पर बोइंग उड़ता है मैम हमारा। ओ। जिस एल्टीट्यूड पे बोइंग उड़ता है उस हाइट पर ये उड़ के हमारे आती है मैम ये। ये ग्वालियर में है आपके? हाँ मैम, ग्वालियर विंटर्स में आती है, फिर वापस चली जाती है, अच्छा, जैसे तो फ्लाइंग भी फोटो लिया होगा आपने? फ्लाइंग वाला भी? फ्लाइंग के फोटो वो है, मैं आपको देखता हूँ आगे मिलेगा। लेकिन इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है मैम, सबसे हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। अरे वाह। मैम ये भी एक कॉमन बर्ड है, रेयर नहीं, कॉमन बर्ड है। इसको हम श्राइक बोलते हैं, श्राइक। ओके। ऐसे चाराई की श्राइक। और मैम इसको कॉमन लैंग्वेज में बुचर बर्ड भी बोलते हैं, बुचर बर्ड। हम्म। बुचर मीन कसाई चिड़िया। हम्म। तो मैम बुचर बोलते हैं क्योंकि इसकी एक बड़ी यूनिक हैबिट होती है। ये अपने शिकार को पकड़ के, जिंदा शिकार को किसी पेड़ के कांटे में गड़ा देती है, ओहो। और उसके बाद उसको तड़पा तड़पा के खाती है मैम। ओ, मुझे लग रहा है आंखें सब। बंद है उसकी पट्टी से। हाँ, ब्लैक ब्लैक। है, ब्लैक जी। मैम लोग कहते हैं कि ये मिथ है, कंफर्म नहीं है स्टोरी, लेकिन एक्चुअली हम्म। इसका रियल फोटोग्राफ मेरे पास है, जो अगली फोटो में आपको दिखाता हूँ मैं। कि हम्म। इसमें देखिए, ये फ्रॉग को कांटे में घुसा ओहो। रखा है। ओहो। तो इसलिए ये इसका अरे नाम बाप बुचर रे, बर्ड। तड़पता जी। हुआ बेचारा। एनीवेज, फ्रॉग ने ये भी योगा कर लिया वहाँ। ये मैम शिकारी पक्षी है, रेप्टर जिसको हम बोलते हैं। ये केस्ट्रल नाम है, कॉमन केस्ट्रल। क्या दिस इज एक्सप्रेशन है। यूरेशियन स्पून बिल। मैम इसलिए हम्म। स्पून बिल नाम पड़ा क्योंकि इसकी जो बीक या बिल है वो स्पून के शेप में है। हम्म। स्पून बिल है ये। अमेजिंग। दिस इज अगेन कॉमन केस्ट्रल। दिस इज विस्लिंग डक, लेसर विस्लिंग डक। इसकी हम्म। आवाज ऐसी आवाज निकालती है, इसलिए नाम विस्लिंग डक पड़ गया मैंने। टाइगर। This is another beautiful migratory bird, very small bird, which is called Tickle's blue flycatcher. हम्म। मैम एविएशन का एक और फोटोग्राफ। हम्म। Su-30 MKI, सुखोई 30। अभी वाह। आपने सुना होगा ना, जिसने ब्रह्मोस चलाए थे हम पाकिस्तान के ऊपर। हाँ हाँ, तो ये दिस इज इसके ऊपर कवर है प्लास्टिक का ना? देयर इज अ कवर ऑन द पायलट। ग्लास कैनोपी होती है, हाँ, ग्लास ग्लास कैनोपी कवर। होती है, हाँ, कैनोपी वो होती दिख ही नहीं रहा है फोटो में, ऐसा लग रहा है कि ओपन में बैठे हैं वो लोग। है। जी जी। बढ़िया फोटो है। ओह। थैंक यू मैम। ये देखिए, सफाई ये वन सफाई ऑफ द अच्छी रेयर दिखती है। फोटोग्राफ। सफाई अच्छी की है। जी सर, जी सर। ये ये देखिए क्या सर, वो है? स्कॉर्पियन बिच्छू को पकड़ के खा रहा था ये। स्कॉर्पियन। ओ माय हाँ। गॉड। नॉर्मली ये बर्ड्स क्या करते हैं, मैं उसको जंप करके टॉस करते हैं, सो दैट कि हम्म। एंगल उनकी जाए, सो दैट उसको स्वेलो करने पूरा। हम्म। इंडियन रोडर विद स्कॉर्पियन। वाह। अनदर टाइगर। हम्म। मैम फ्लेमिंगोज। आउल है, ब्राउन फिश आउल। ये क्या फिश का डिटेल्स शिकार। कैप्चर किए ना, इसके फेदर्स तो बहुत ही सुंदर है। कितना भी क्लोज कर लेंगे डिटेल्स प्रॉपर इसकी। वाह। मनीषा, अनदर क्या ब्यूटीफुल। फोटोज तुमने कितने बढ़िया हाँ, इनवाइट किया यस, है मिस्टर शर्मा को। बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ्स हैं इनकी। बहुत बड़ी। ही अमेजिंग। और ये तो थैंक पेंटिंग है एकदम। बहुत ही वन ऑफ द Identities- मोस्ट फैसिनेटिंग प्रेजेंटेशंस दैट यू कैन सी। सुपर हाँ। फैसिनेटिंग। यू सो मच हम्म, सर, थैंक यू सो मच। ये आपने लिया ये फोटो? वाह। यस मैम, सारे फोटोज मेरे हैं मैम। ओ जी माय जी। गॉड। क्या इसका इसको कैप्चर नाम एक है सब डिटेल। वेलवेट फ्रंटेड नटेज है, नटेज। वेलवेट फ्रंटेड नटेज। और ये मैम या तो आपको मिलेगी वेस्टर्न घाट्स पे, या मिलेगी आपको उत्तराखंड हिमालय के पहाड़ों पे। वेलवेट फ्रंटेड नटेच। नटेज। ओके। उसकी लीफ भी बड़ी सुंदर है पीछे। अनदर बर्ड, दिस इज अल्ट्रा मरीन फ्लाई कैचर। हम्म। बर्ड है मैम, काफी रेयर ये बर्ड है। मरीन दिख रही है, हाँ एकदम। मरीन कलर। ओहो। मैम वेरी पूरे डिफरेंट एंड वेरी ग्वालियर रेयर में बर्ड।
नहीं, पूरे जी ग्वालियर में एक सिलसिला सा शुरू हो गया था आफ्टर संजय स्टार्टेड गेटिंग रिकॉग्निशन। एक सिलसिला यस हाँ सा शुरू हो गया था स्पेशली अमंग द डॉक्टर्स। जी They जी हाँ all first they all made a group and learned from Sanjay about the camera work, and then हम्म which brand they should buy. Then everybody bought. यस Then everybody captured. opened Then up Sorry a to new interrupt, horizon हाँ बट संजय जी आपका फोन नंबर जरूर इसमें चैट में आप दे दीजिएगा. आई विल सेंड यू अ लिंक फॉर अ ग्रुप where श्योर मैम there are mostly doctors and other people also who are like wildlife enthusiasts, and basically we there you will get beautiful like interactions for all kinds of birds, wildlife, travel and everything. So श्योर मैम anybody who wants to join, please send me your numbers chat box mein. I'll send you the link. The तो group नमिता is called Nature नमिता and Travels. तो उस पे अपना नाम अपना नंबर और साइट का नाम डाल देना प्लीज नहीं, वो व्हाट्सएप ग्रुप है. So नहीं तेरा मैं बोल रही हूँ तेरा yeah. नंबर चैट में डाल दे और हाँ, so if anyone everybody can wants to send me the contact you numbers. Yeah. हाँ and अच्छा Okay. मैं site name also Sure. मैं तुझे संजय का नंबर भेज दूंगी. हाँ that जी would हाँ, be nice sure. और चल ये कंटिन्यू क्या कर. ये कबूतर तो नहीं थे ना ये तो कुछ और बर्ड्स थे ये नहीं मैम नहीं, they are एशी not pigeon. क्या है ये एशी वुड्स वैलो एशी वुड्स वैलो वुड्स वालो वुड्स वैलो ये भी रेयर बर्ड है मैं कबूतर तो बहुत कॉमन ये बहुत रेयर बर्ड है बहुत जी हाँ इनकी बीक बड़ी यूनिक ओ वाह जी ये फ्लॉक बर्ड का है हाँ जी इसको वो बोलते हैं ना जब ये सब साथ में टेक ऑफ करते हैं साथ में लैंड करते हैं तो वर्ड इज अ वर्ड फॉर इट मर्मरेशन मर्मरेशन हाँ वो स्टारलिंग्स करते हैं मैम स्टारलिंग्स मैन आल्सो ओके ये वही वाली है ना, लॉन्ग टेल्ड जो बताई थी शुरू में, वही वर्ड है ना. नहीं ये नहीं है ये इसका नाम है रफ नाम है इसका रफ RUFF रफ और यू अब डबल इतनी दूर से आपने हमको एक समझाई, वो लंबी पूंछ वाली सफेद जो इन फ्लाइट थी. अब हमको दूर से ना उसी के बारे में मालूम है, तो ये सब हमको कॉमन लग रही है. बट इट इज द जी रियल पर्सन हु नोज, तो फिर वो पता कर हम्म सकता है. बहुत जी नॉलेज जी चाहिए उसके ये लिए, रफ ये हाँ मतलब. बहुत बहुत बनी सारी बर्ड्स इसमें बहुत सिमिलर हैं इसमें हम्म. बहुत सारा ज्यादा नॉलेज चाहिए समझने के लिए कौन सी जैसे छोटी छोटी सारी बर्ड्स हैं उसमें जी हाँ काफी जी हाँ सिमिलैरिटी है सो यू रियली नीड टू नो दिस रियली वेरी वेल वेरी वेल. एग्जैक्टली और सर ये ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आया, वो बैठी उस पे डगाल पे आके और उनने फटाफट देखी और कैप्चर भी कर लिया. और वो जैसे डबल थोड़ा सा ट्रैप शूटिंग होती है ना, डबल ट्रैप शूटिंग में दो टारगेट उछालते हैं और उसको आपको शूट करना होता है, उतना ही समय होता है मेरे ख्याल से. जी 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 हाँ, बर्ड को कैप्चर करना और आइडेंटिफाई कर लेना है. या क्या आप ऐसा यूनिक कैप्चर बर्ड कर शॉट है लेते. ना ये नहीं, शॉट इज इट कितना दैट बढ़िया यू. है हाँ, ओवरलैप इज इट दैट संजय यू कैप्चर एंड देन लेटर ऑन सी एट अ क्लोज शॉट की ये था क्या? ऐसा नहीं सर करते क्या हर एक. मोस्टली नहीं नहीं मैम मोस्टली मतलब 95% 98% चांसेस में मैं पहले से पहचान लेता हूँ और कभी कभी अच्छा, बहुत कोई रेयर बर्ड कभी कंफ्यूज कर रही है कभी लाइट प्रॉपर नहीं पड़ रही है देख नहीं पा रहा हूँ मैं तो वो फिर बाद में चेक करना पड़ता है मुझे बाद में चेक मतलब करना मोस्टली पड़ता. हाँ एक्चुअली इंडिया की जितनी बर्ड्स हैं ना अगर नॉर्थ ईस्ट की बर्ड कुछ एक छोड़ दें अदरवाइज तो बाकी हम पहचान ही लेते हैं उसमें कोई इशू हम्म. नहीं है और आप एक अदरवाइज कुछ साथ में बहुत सारी क्लिक करते हैं क्या कि यू यू ट्राई टू डू प्रिसिजन क्लिक नहीं मैं फ्लाइंग शॉट के लिए आपको मल्टीपल शॉट्स लेने पड़ेंगे हम्म जो बस जो बस मोड भी बोलते हैं उसको ये हम्म हाई FPS बोलते हैं मतलब हाई फ्रेम पर सेकेंड ओके मतलब एक सेकंड में आप ज्यादा से ज्यादा क्लिक कर पाए वो कैमरे पे डिपेंड करता है सो दैट आप उसको कैप्चर कर पाए और प्रॉपरली उसको ले पाए नहीं तो मिस कर जाएंगे आप कुछ फ्लाइंग शॉट आ ही नहीं पाएगा हम्म एक मैम ये ओहो, बहुत क्या कलर्स, बहुत हम्म, सुंदर जी कलर. जी जी ये मैम इसका नाम नहीं है ग्रीन मैगपाई ग्रीन मैगपाई 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 मैगपाई. जो चिड़ैया, हाँ अपनी जो चिड़िया कॉमन चिड़िया रहता है वो मैगपाई है ना. हाँ मैगपाई तो वो चोर होती है गौरैया. ना चोरी करती है पाए चोरी रेड करते ब्लू गौरैया ब्लू कौन सी मैगपाई रहती है, गौरैया? गौरैया स्पैरो है उसका भी फोटो में देखता हूँ स्पैरो वो तो बहुत कॉमन है स्पैरो. हालांकि जी जी मैं तो हाँ, इसकी आय से फैसिनेटेड हूँ उसकी आंख देखो एकदम बहुत और बॉडी सुंदर. कलर देखिए बीक, कलर ग्रीन बॉडी कलर, बीक का कलर कंट्रास्ट. जी हाँ ये भी मैम बहुत रेयर बर्ड है इसके लिए स्पेशली लोग जाते हैं उत्तराखंड हिमालय के पहाड़ों में इसका फोटो लेने के लिए बहुत रेयर है हम्म कभी दिखती नहीं मैं है सॉरी टू इंटरप्ट पर मैं आपको 5 मिनट का वो हेड्स अप दे देती हूँ क्योंकि इसके बाद हमारी जूम लिंक पे वो मेडिटेशन ग्रुप होता है एक अच्छा इंडिया अच्छा के 7:30 बजे से
तो जी हम 5 मिनट में रैप अप करके फिर हम आपको जरूर वापस लाएंगे, ताकि हम और फोटोज को सारे और थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा थ्योरी डेफिनेटली। ज्यादा हम संजय, लोग। अभी आर तो यू इनटू मराइन लाइफ आल्सो? मराइन लाइफ भी करते हैं ना शायद आप? नहीं, मरीन लाइफ नहीं किया मैम कभी। नहीं करते, ओके नहीं। ओके, बहुत तो वाइल्ड लाइफ बहुत ही है। शानदार। हाँ अभी अभी तो मैम आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए सब फोटोज दिखाए जा रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, बहुत। मैंने एक्चुअली साइन अप करना था, एक बोटैनिक गार्डन में था एक बिगिनर्स क्लास, वो सोल्ड आउट हो गया, पर मुझे मतलब लगा कि थोड़ा तैयारी करूँ मैं, पर नाउ आई विल डेफिनेटली फॉलो अप ऑन इट। तो तो फिर सर छाया एक भैया, क्वेश्चन, ब्रेकिंग। क्योंकि टाइम कम है सर, एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं कि हाँ ये जी जो जी। लेंस हम लोग देखते हैं वो 70 to 300 ऐसा लिखा रहता है, वो लेंस चल जाएगा सर कि वो थोड़ा लो उसका पावर है हमको कुछ? टू स्टार्ट विद वो लेंस अच्छा है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने उसी लेंस से स्टार्ट किया था, वाइल्ड लाइफ और बर्ड लाइफ, उसी लेंस से स्टार्ट किया था। हाँ 70-300 इज वेरी गुड लेंस, बहुत अच्छा लेंस है। अच्छा लेकिन कुछ समय बाद आपको वो रीच थोड़ा सा कम महसूस होगी, कम पड़ेगी। तो आइडियल आइडियल रीच जो है 500 आइडियल है, 500 आइडियल है। तो उसमें जैसे रेंज होगा सर इतने से इतना कि 500 होना चाहिए वो? नहीं, दो, दो तरह के लेंस आते हैं। एक जूम लेंस होता है, जूम में आपको रेंज हम्म मिलती है, जैसे 200-500 अच्छा आता है, 150-600 आता है। अगर आप टेली लेंस लेंगे, टेली लेंस आता है, प्राइम लेंस बोलते हैं उसको, 500 फिक्स होगा वो। अच्छा अच्छा तो उसमें ओके सर, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, राइट वो सर। आपको उसी डिस्टेंस पे आप फोटो ले पाओगे, और जूम में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो बट स्टार्टिंग लेकिन में 770-300 लेके फिर बाद में हम लोग 500 लें तो चलेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपका फ्यूचर कोर्स आप डिसाइड ही कर रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ करना है, बर्ड लाइफ, तो फिर आप सीधे आप 500 पे जाइए, 200-500 पे, 150-600, क्योंकि बाद में आपको अच्छा चेंज करना पड़ेगा, बाद में आपको चेंज करना अच्छा पड़ेगा। अच्छा लेकिन ओके जैसे हम लोग अपनी, गॉट इट सर। हाँ, किट हम बनाते हैं, तो किट में अगर वो लेंस रहता है तो किट कंप्लीट हो जाती है। आपका 70-300 भी है, 200-500 भी है, 150-600 भी, इस तरह से। तो 70-300 इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर फोटोग्राफी, तो वो भी आप रख ओके सकते हैं। लेकिन 500 ओके से कम में काम नहीं चलेगा आज चलते। जी। वेरी वेल, तो बहुत मजा आया सर, इट एनीवेज, इज ऑसम, बहुत ही गजब। तो हम लोग फिनिश करें अभी, बाकी फिर हम बाद में देखते हैं। हाँ 2 मिनट परमिट। आप रैप अप में बता सकते हैं, और फिर मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना था, पर जी 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 आप मैम। आप पार्टिंग बाकी शॉट्स मैम, बता दीजिए 2-3, बहुत ही हाँ सुंदर है। हाँ, बाकी तो फोटोग्राफ तो बहुत बहुत है, खैर नो इश्यूज। तो ओ माय गॉड। हम लोग, हाँ, तो बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अगर क्या हम लोग एनिमल वाइल्ड है, लाइफ करना सॉरी? चाहते ये क्या? हैं, ये मैम, ये भी हिमालयन एनिमल है, इसका नाम है येलो थ्रोटेड मार्टिन। मार्टिन। मार्टिन, यस यस यस। तो इट्स ए गुड हॉबी, एक कंस्ट्रक्टिव हॉबी है, बर्ड वॉचिंग, बर्ड फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जितने लोग से मिलता हूँ, मोस्टली बहुत लोग बहुत आपकी फील्ड से मिलते हैं, डॉक्टर्स लोग मिलते हैं, बाकी ये बहुत लोग स्ट्रेस इंटरेस्ट। रिडक्शन के लिए, बर्नआउट करने के लिए बहुत अच्छी फील्ड है। वेरी ट्रू, मैंने वेरी ट्रू। बिकॉज यू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, और आपका इंस्टेंट स्ट्रेस रिडक्शन हो जी जाता जी। है नेचर से सर कनेक्ट आपने करके। बुक्स लिखी हैं कुछ? सर एग्जैक्टली मैंने बुक पूरी नहीं लिखी, लेकिन मेरी बुक्स काफी पब्लिश हुई, आई मीन टू से कि उसमें मेरे आर्टिकल्स और इवन सोलो मेरी फोटोग्राफी उसमें रही है, लेकिन बुक नरेशन या ओके बुक राइटिंग किसी और ने है, फोटोग्राफ मेरे रहे हैं सारे। तो मतलब नहीं, वाइल्ड मैं लाइफ कंपटीशन। आई एम इंस्पायर्ड टू बाई ए बुक। तो मतलब हम तो डॉक्टर सलीम अली उनको ही जानते हैं, लेकिन आई एम जी श्योर जी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर पीपल। तो आई एम जी इंस्पायर्ड जी। टू बाई ए बुक नाउ, आई विल गेट वन मैं वेरी सून। एक बुक सजेस्ट करूंगा, मैं आपको बुक आइडेंटिफिकेशन में सजेस्ट करूंगा, मनीषा मैम को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, तो वो आपको सेपरेट कर देंगे। तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी बुक है, अच्छी हेल्प करती है। तो मैं अभी शाम को उनको भेज दूंगा मैम को। ओके ओके राइट, थैंक मैं यू भी सर। मैं भी लूंगी अनुराग, तुम्हारे साथ साथ सीखूंगी मैं भी। मैडम मैं तो बिल्कुल आई एम वेरी इंस्पायर्ड, बहुत बढ़िया था, हाँ? इतना मजा आया वो कलर्स देख के। वो बहुत ही। इट इज सच ए स्पेक्टेकुलर वर्ल्ड, और हम लोग ये क्या वंचित है, हैं उस ये चीज वाला? से। ये ये मैम, ये भी मैकपाई है। ये मैकपाई की स्पीशीज, रेड बिल्ड ब्लू मैकपाई। इसकी क्या रेड फेदर्स बिल्ड, है? ओ माय गॉड, हाँ एक मैम, आउटफिट। एग्जैक्टली। नहीं मतलब uh, अभी डेफिनेटली विल ब्रिंग यू बैक, हम लोग को तो इन चीजों में जरा I भी have one नॉलेज। quick question. हाँ नमिता बोल। यस Sanjay ji, a technical question. A lot of जी मैम। people, like when they go out for bird watching, normally तो we say कि आप चुपचाप बैठिए और
कोशिश करिए उनको उनके कॉल्स से पहचानने के लिए। आजकल आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल यूजिंग फोन पे वो बर्ड के कॉल्स, so they play that so the birds come out from the hiding. Is that the correct way to go, or is it like not advisable? It is unethical actually. People do. Yeah, People I've do seen that. a People do few advise. people doing that. Yeah. Yes. मतलब it is unethical और even हाँ कुछ प्लेसेस में पुलिस डिपार्टमेंट ने नोटिस लगा रखे, बैन कर रखा है उसको कि इसको जी जी बर्ड कॉल आप प्ले ना करें। तो हाँ, वैसे but नॉर्मली I've नहीं करना seen चाहिए। आजकल ना because of the phone जी everybody has access to it and then they play. थोड़ा पहले सा कई बार yes. मतलब इम्पल्सिव या बिहेवियर हो जाता है ना, थोड़ा वो टिकना। नो उससे बर्ड्स का बिहेवियर भी मैम चेंज होता है उससे, चेंज होता है, आई नो। डिफरेंट। नो, इफ यू गो टू रणथंबोर, वहां पे आप जी देखिएगा ये जो हमारी कॉमन ट्री पाए है, द इंडियन ट्री हाँ पाए, हाँ वो जी आपके जी सर पे भी आके आराम से बैठ जाती है। हाँ हाँ हाँ, और जी अगर आपके बिस्किट पास खाती है। कुछ मतलब लोग उसको बिस्किट खिलाते हैं, कुछ खिलाते हैं, वो आके खाती जी है। बट इट्स लाइक नॉट गुड फॉर द बर्ड, बट या पीपल हाँ, डू इट। यस मैम। मुझे मुझे पूछना था, मेरी डॉटर यहाँ पे बता रही थी कि गुजरात में कोई गांव या शहर है जहाँ पे टाइगर्स ओपनली घूमते हैं। आपको पता है ऐसे कोई जगह? आई थिंक नहीं मैम, के बारे टाइगर में नहीं, वहाँ लॉयंस घूमते हैं, दैट इज गिर एरिया है। गिर के तो एरिया में वहाँ हाँ, ओके लायंस ओके, डू रोम लायंस, अराउंड। ओके। जी बिकॉज हर वैसे फ्रेंड वहाँ in वाज, बहुत fact no, I have a like a I'll share that video, I'll look for it. जी ये भीमताल के ऊपर थोड़े से एक जगह है, झीलिंग एस्टेट। तो वहां पे हाँ हाँ इनफैक्ट स्टीव लाल इज वन पर्सन हु हैज cottages out there and he is the major owner of that estate. So वहां ओके उनके किचन विंडो से we have taken a like a tiger. अच्छा। एंड वहां पे मतलब आते हैं एनिमल्स, सो इट्स लाइक अ वीडियो, नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी फोन का ही है, बट आई विल शेयर इट। सो वो है कि हाँ, वाइल्ड लाइफ यू डू, एंड बार्किंग डियर्स एट नाइट यू कैन हियर देम। सो यस यस, क्योंकि वो पार्किंग भीमताल डियर। जो अभी ब्यूटीफुल बर्ड्स दिखा रहे संजय। मैं तो आई वो नो। देख रही थी, एक जो छोटा सा बेबी ट्रंक में से निकला था, वो बड़ा हाँ स्वीट यस था। ये क्या हाँ, दैट क्या इज अ है? बारबेट आई थिंक, है ना? हाँ बारबेट, कॉपर स्मिथ बारबेट, वेरी बारबेट। नाइस, वो या अंदर से ग्रेट कहाँ बंदा। से निकल रहा है वो? ओह माय फुल्ली गॉड। एडल्ट, फुल्ली एडल्ट बर्ड है, बेबी नहीं है मैम, बर्ड है, एडल्ट हाँ, बर्ड है। अच्छा। एडल्ट है। कॉपर स्मिथ बारबेट। संजय, फीडिंग से, बर्ड फीडिंग से मुझे याद आया कि some people they are mistaken and they think that birds they need to be fed to survive, but actually this is a misnomer and main reason that we feed them is that we enjoy with them. यस, ऐसे बट मैं अनएथिकल है, फीड नहीं करना चाहिए बर्ड्स को। तो केवल पानी मिल जाए, बाकी फीडिंग अपने आप अरेंज कर लेती हैं। अपने या आप बर्ड्स कर का दे मोस्टली वही, आई थिंक वाटर हाँ इन द समर्स इज इम्पोर्टेंट। फूड उनका मैम इंसेक्ट्स होता है, इंसेक्ट्स मोस्टली, या अदरवाइज पॉलेंस वगैरह, वो नेचर ने उनको प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि लोग मंदिरों के आसपास बंदरों को खाना देते हैं मैम, केले खिला रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, तो वो हाईली अनएथिकल है, हाईली इलीगल भी है मैम। बंदरों को खाना खिलाना, केला खिलाना, जैसे मंदिरों में आपने देखा होगा, वो इलीगल है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैन अरेस्ट यू, उस पर केस दर्ज हो सकता है, लेकिन कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। पब्लिक प्लेसेस पे ये बड़ा न्यूसेंस रहता है, पर यहाँ पे जैसे हाँ खुद के नहीं घर नहीं, में इंडिया में बर्ड तो फीडर। रिलीजियस एंगल होता है ना छाया, यस मैम, वहां तो क्या है? राइट। वृंदावन में आई हैव हर्ड कि वृंदावन में अपन जाते हैं तो अपना चश्मा मांग ले जाता है, हाँ आपके हाँ, बैग वो को ले जाएगा, ओ दे आर ट्रेन्ड। आपकी बिलोंग, हाँ वो ट्रेंड है दूसरों के द्वारा फॉर थेफ्ट, आई थिंक दे टेक अवे योर बिलोंगिंग्स। ओह या माय जी हाँ जी नो, एंड देन द गाय, लोकल गाय विल टेल यू कि मैं इससे आपको वापस दिलवा दूंगा, आप मुझे पैसे दे दो, और वो 100 रुपए दे आप उसको दो, हाँ वो उसको हाँ बंदर को बोलेगा, बंदर आके चश्मा उसको दे जाएगा। बस बस बस। तो जैसे वो एक उसमें और था ना, चीज। डंकन, डंकन हाँ, वाज ट्रेन्ड, वैसे ये भी है, यहाँ एक पे और भी चीज है। मुझे पूछनी थी। यहाँ पे यूएस में जब माइग्रेशन होता है, तो जी जैसे अभी 2 हफ्ते पहले हुआ था, तो बड़ा अनाउंसमेंट आता है कि हाई राइज बिल्डिंग और सब लोग जो रहते हैं उनकी लाइट्स टर्न ऑफ करें, और विंडोज अच्छा। को रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉट ऑफ बर्ड्स डाई ड्यूरिंग माइग्रेशन यदि लाइट्स ओके ऑन है। तो वहां पे इंडिया जी में ऐसा कुछ करते हैं आप लोग? नहीं, नहीं यार छाया, अपने यहाँ कौन सुनता है ऐसा, और कोई तो करता भी लोग, नहीं है कुछ। मतलब मुझे इतना वो बर्ड लवर्स के अलावा नहीं, दे मेक No, श्योर कि I चार remember चार once घंटे के we लिए। had gone around Diwali to Bharatpur,
which is one of the biggest bird sanctuaries in India. हम्म And जी जी इतने पटाखे थे, इतने हम्म पटाखों की आवाज थी कि वो बेचारे बर्ड्स भी परेशान हो गए थे. I मैम वन just लास्ट learned about कि फटाकों से बम्बल क्या बीज भी बड़ी परेशान हो जाती है, डिसोरिएंट हो जाती है और ये सब. Yeah. Amazing. मैम लास्ट स्टोरी, बस लास्ट फिनिशिंग हाँ स्टोरी. दिस हाँ बर्ड इज कॉल्ड बया वीवर. बया का नाम सुना होगा आपने, बया हाँ द आर्किटेक्ट ऑफ द बर्ड्स. सो ये मैम बया का जो नेस्ट होता है आपने देखा होगा, टेलर बहुत बर्ड, अच्छा आर्किटेक्ट डिजाइन होता है जी. टेलर बर्ड। नहीं, टेलर बर्ड वीवर. डिफरेंट, ये अच्छा वीवर अच्छा, बर्ड है. ओके. बया वीवर का बर्ड का मैम घोंसला, बया का घोंसला हाँ जो रहता है, बहुत अच्छा हाँ बना 2 BH है. 2 BH के फ्लैट, 2 BH के उसमें हाँ सेफ्टी का अरेंजमेंट होता है, उसमें सेफ्टी का अरेंजमेंट होता है, लाइट का भी अरेंजमेंट होता है उसमें. तो मैम हाँ उसमें स्टोरी क्या है कि ये बया का मेल है. मेल जो बया का नेस्ट है, घोंसला, वो मेल ही बनाता है, फीमेल नहीं बनाती. मेल बनाता है, और जब आधा बन जाता है तो फीमेल आती है, उसको चेक करती है, इंस्पेक्ट करती है. अगर उसको पसंद आएगा तब वो कंप्लीट करेगा, अदरवाइज उसको दोबारा फिर से नया बनाना पड़ेगा. बैटरी That is the reason. बैटरी आपकी Exactly. जंगल में आप Amazing. कभी जाएंगे तो वो आधे बने हुए हाफ कंस्ट्रक्टेड नेस्ट दिख जाएंगे. वो यही रीजन है Yeah. मैम. आपने रिजेक्टेड बाय नेस्ट का फीमेल्स. फोटो लिया है? नेस्ट का फोटो लिया है? बहुत 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 फोटो मैम भेजूंगा आपको, ओके बहुत फोटो ओके. सर. हाँ नहीं, हम हमको जरूर वापस आएंगे. टाइम कैसे निकला ना, समझ में नहीं आया आज तो. नहीं, हाँ really enjoyed. Generally, Thank बहुत you so सुंदर. much. generally, it was Yeah. a बहुत very सुंदर. nice start for the day for me and very nice. I'm sure India में भी सब आराम से बैठे. But it was a लग I wonderful know. beginning of the day to me. बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर. मनीषा थैंक यू फॉर, आपने बड़ा स्पीडीली अरेंज किया ये सेशन. और नमिता ने सजेस्ट किया था कि हम लोग को बर्ड वॉचिंग और इस पे सेशन करना चाहिए. So this was जी जी more than bird watching, wonderful. And Yeah, like Sanjay is Anurag is very saying, learned. Sanjay is very learned and he has many stories to tell, but the yes the ma'am. time I'm constrained. constraints. नहीं हम we'll do follow up session definitely. हम लोग will be our first choice rather than learn medical things. और I know. मैं अपनी डॉटर का कैमरा निकालूंगी, उसके पास है थोड़ा ढंग ढंग का, तो मैं I will send you a shot at least, something हाँ I please please. capture. Sure ma'am, sure ma'am. And Thank maybe you. I can help. Thank you so much, Sanjay ji. Yeah, and Welcome. we'll bother you for guidance. And you Anytime, can anytime. send the numbers. Manisha, please I've share his shared my number. number. Please Sure. share his Sure. number and thank you for your Sure. time. आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत ही. Welcome ma'am. It's my pleasure. और इस My बहाने pleasure. मनीषा भी आ गई सिनर्जी में वीडियो पे, अदरवाइज वो उसको हमको ढूंढना पड़ता है कहाँ है मनीषा. सीमा, थैंक यू, यू स्टेड फॉर द सेशन. सीमा हमारी बैचमेट है. Thank you, everyone. Schoolmate, हमारी स्कूलमेट है ये. हाई स्कूल मेट. वो भी बहुत एनर्जेटिक है, तो वो भी कुछ करेगी अब. देखो मैंने पीछे वाइल्ड लाइफ लगाया हुआ है, मैंने वो बनाया मिक्स मीडिया. Nice ma'am, very nice. जी जी. चलो, तो थैंक selfie यू. follow. नमस्ते. नमस्कार मैम. Thank you. Thank you ma'am. Thank you so Bye. much. Thank you, छुट्टी हो Sanjay. गई, Thank you. क्लास खत्म. Thank you ma'am. Thank you, Manisha. Thank you. Thank you. बाय बाय. Bye. बाय.